claiming that this was a very pre-planned thing. I have started to believe it. That it was planned. बाहर जो चीज़ें चल रही हैं, जो proofs बाहर आ रहे हैं, अब ये तो अब आ रहे हैं ना, लोग अब निकालने लगे हैं. मैंने ये आधी चीज़ें पहले ही देख ली थी कि वो हैलोवीन पार्टी पे 31st वाली पे, तो वो सब देख के मेरे को ऑलरेडी लग गया था. इवन जब योगेश ने ये डिसीजन ले लिया था, तो ये स्टेज पे नहीं लिया था डिसीजन, इसने पहले ले लिया था. इसने जब इसकी और रूरू की बातें चल रही थी रूम में, तो आई एंटर्ड और उसने मुझे बोला कि आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर रूरू. आई गॉट अप एंड आई वेंट आउटसाइड. फिर मैं अपने रूम में चली गई. मैंने दिखाया नहीं. ये नहीं दिखाया. If you were in Yogesh's situation, what would you pick? After the lies, I completely hate that girl. क्योंकि firstly she character assassinated me in front of the entire world. अपूर्वा का अगर तुम्हें साइड लेनी थी as a girl, तो उसमें तुम एक दूसरी लड़की की इज्जत तो completely खराब कर रहे हो, जो कि मतलब लिटरली मैं उसका भाई बोलती हूँ. मैंने उसको बोला है कि इस बार मैं राखी बांधूंगी तो क्या गिफ्ट देगा, हम ये बातें करते. Saurabh knew about Ruru, right, on the show. Did you ever ask him that? Did you feel betrayed at that time? तुमको पहले ही पता था कि योगेश आने वाला है शो पे, बाहर आ चुका था और तुमने पहले से ही प्लान कर रखा था कि योगेश के साथ ही मैं pair up होंगी. Is that true? What is the whole thing? That is not true. When a guy is confused between two girls, leave him. Have you guys ever spoken after the show? I mean, show end हो गया था, तो तब we had our last conversation. Would you ever give Yogesh a second chance? Last year, you guys gave a lot of love to my show Off the Record, and that's why I decided that 1 year later, I will come up with the second season of Off the Record, and this time, it's powered by one of my most favorite fashion brands, which is Snitch. So without wasting any more time, for my interview with Akanksha today, who is possibly the most viral contestant of Splitsvilla 16 at this point, and talking about love, heartbreak, everything, I decided to give myself a makeover, a Snitch makeover. So let's go inside the store and find something nice that I'm going to wear for my interview. Help me out also. Should I just go try it on and give you the whole look? आज मैं तो फुल रेडी होके फिट चेक करवा के आया हूँ, as you can see. Adulting. Fully. No, thank you. No, thank you. Us. Yes, in this episode of Off the Record Season 2 presented by Snitch. Snitch is a brand that I have always loved and अभी मैं shoot करके आया हूँ. I actually put this whole look together for you, by the way. Ooh, denim on denim. And of course this. ये तो I can relate. That's why. अभी नया चालू हुआ है, मेरा नहीं हो पा रहा है मुझसे थोड़ा सा. But I've got something for you also, which you will win if you are very honest throughout the conversation from Snitch. I think I've picked it up for you. I want to know if you like it. Do you like denim jackets? Yeah, I love it. Oh, you do. I love that. If you like this, more than that also, you can take this. ठीक है. Okay. अब बोल दिया, अब लेके जाऊंगी मैं. Also, you can take this also. But thank you for doing this, Akanksha. And you know, we've already done one segment, and I know you're one of the liveliest human beings. But for a person who's so lively, let's just dive right into it. आ जाओ. How difficult does it get when you are not able to make that amount of friendships or relationships, like rishte? I'm not talking about relationships only about romantic relationship, but does that get to you ever emotionally, or have you crossed that phase? कि I find it difficult making friends and. No, when you try maybe because you're emotional. Yeah. But फिर भी दोस्ती में जब दोस्ती नहीं होती इतनी, या रिश्ते ठीक से बन नहीं पाते जैसे आप सोचते हो, तो क्या लगता है? यार I think मेरा एक दिक्कत है कि मैं एक तो दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है. आई थिंक मैं पहली बार मिलते ही मैं सबसे इतना वो हो जाती हूँ कि आई एम अ पीपल प्लीजर कम्प्लीटली. तो अगर किसी ने कुछ किया भी है बुरा, बहुत गंदा जो हुआ है अभी कुछ पास्ट के दिनों में, तो फिर भी मैं उनको है ना, वो रियल लाइफ में मिलते हैं ना जब, तो मैं भूल जाती हूँ. शो के लोग भी जो जिनसे मेरी बीफ हो रखी है, अगर वो मेरे को रियल लाइफ में मिलते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार हो गया, चलो अब इंसान है, अब प्लेयर्स नहीं है, अब कोई गेम के प्यादे नहीं है, अब हम नॉर्मली मिल सकते हैं. तो तब मैं भूल जाती हूँ उन्होंने क्या बोला था, तब क्या
मेरा हालत थी, व्हाट वाज द सिचुएशन, सब भूल जाती हूँ। तो वो पीपल प्लीजिंग वाला आ जाता है कि चलो अच्छे से बात करते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। वो एक चीज़ है जो मेरे जो जयपुर के दोस्त ना मुझे इतना डांटते हैं कि बॉम्बे में आने के बाद नहीं करना है ये देखो कि बट वो अभी भी है, you're saying? या अभी भी है। मैं अभी भी सुजैन को भी मैं बहुत बोलती हूँ ये चीज़। सुजैन तो मुझे पकड़ के लेके चल जाती है, तो क्या पागल है क्या तो सामने, मतलब सुजैन इज़ वेरी ब्लंट। सामने कोई भी हो जिसके साथ मुझे अच्छे से बात नहीं करनी चाहिए, वो मेरा हाथ पकड़ती लेके जाती है उसी के सामने। तो मैं ऐसे थी, पागल है कि उसके सामने तो मत कर, वो वाली चीज़ होती है। बट आई थिंक मैं जब भी नॉर्मली फर्स्ट टाइम किसी से मिलती हूँ, ये एक लाइन ना मैं अपने पैजेंट डेज से बोलती आ रही हूँ कि treat everyone as if they're having the worst day of their lives and you're there to make it better. How sweet. तो मेरा ऐसे रहता है कि अगर कोई मुझसे मिल रहा है तो एकदम है ना हंसी खुशी होके मिले और जाए भी एकदम अच्छे मूड में जाए। कभी नहीं चाहती कि मेरे से इंटरेक्ट करके कोई दुखी हो। वो एक चीज़ है जो मुझे डर लगता है। तो दिस आई मेक श्योर, बट हमेशा नहीं हो पाता है। कभी ऐसा भी बहुत हुआ है कि जो मेरे बहुत साल के जिनको मैं बेस्ट फ्रेंड समझती थी, सो देयर वाज दिस गाय बैक इन माई होम टाउन। वो मेरे से दो साल से मैं उसकी वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, बट देन समथिंग हैपेंड, सम गर्ल केम, फिर वो प्यार मोहब्बत में पड़ गया, फिर हमारी दोस्ती एकदम ही टूट गई। फिर उसने कुछ 6-7 महीने तक बिल्कुल बात करनी बंद कर दी। फिर जब उसका ब्रेकअप हुआ तो वो वापस आया कि सॉरी मैंने बात नहीं करी है वो, बट आई वाज लाइक कि नहीं, वी वर सो स्ट्रॉन्ग। ये ऐसे आने जाने वाला सिस्टम नहीं समझ आता मुझे। ये तो मुझे लग रहा है अब मेरे लिखा है किस्मत में। क्योंकि मैंने बहुत बार देख लिया शो में भी। आई थिंक मैंने जिनसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, उन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया है। Do you feel sometimes that because you're a deeply emotional person, there's a very thin line of being an emotional person and an emotional fool? Yeah. Do you think that you tend to, for whatever reasons, maybe your mistake, other people's mistake, or maybe it's a personality thing also. Yeah. It's not in no way right or wrong. कुछ लोग होते हैं, मैं आपको क्या wrong बोलूँ, मैं खुद ऐसा हूँ कि somewhere do you feel कि तुम allow कर देते हो अपने लोगों को तुमको emotional से emotional fool बना दे? कंप्लीटली। वो ना पीपल प्लीजिंग वाला कि ठीक है कोई नहीं मैं ही तो हूँ, ऐसा वाला सीन हो जाता है। तो पर पता है ये मैं ऑन स्पॉट जब सिचुएशन हो रही है तब मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर वो अभी सिचुएशन हुई है कुछ ऐसी कि आई शुड रिएक्ट डिफरेंटली, मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ। मैं तब प्रोसेस करती हूँ, फिर 1-2 दिन मैं अच्छा सा प्रोसेस करती हूँ, फिर मुझे समझ आता है कि नहीं मतलब आई डिज़र्व बेटर, कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके बाद मेरा फिर वो अलग वो निकलता है। तो आई थिंक आई नीड माई स्वीट टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स समटाइम्स, क्योंकि जब खुद के लोग जब ऐसा करते हैं ना तो मैं एकदम टेकन अबैक हो जाती हूँ और मैं एकदम स्पीचलेस वाला चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद जब मैं प्रोसेस करके वापस आती हूँ तो फिर मेरा गुस्सा जो निकलता है, आई थिंक शो में मेरा जो गुस्सा निकला, ये मैंने सारे मेकर्स को भी बोला था, प्रोड्यूसर्स को, जब शो खत्म हो गया था, कि मुझे लगा ही नहीं था कि ये जो गुस्सा मुझे पहले ना वो होता है ना अंगूठी पहनाते घर वाले कि मुझे ज़्यादा गुस्सा आता था। मुझे है ना एक टाइम पे बचपन में इतना गुस्सा आता था, मुझे गुस्सा आता, मैं चीज़ें तोड़ती फोड़ती थी, तो मुझे करते थे कि वो अंगूठी पहना के रखना। पर ओवर द टाइम स्कूल एंड में और जब मैं पढ़ने लगी, जब कॉलेज गई और फिर पैजेंट्स तो कम्प्लीटली चेंज हुई। तो मैं आई थिंक मैंने पिछले 5 साल में ऐसी लड़ाई नहीं करी होगी जैसी मैंने स्प्लिट्स आके करी थी। तो वहाँ तो लिटरली मारा पीटी वगैरह हुई है, दीक्षा और मेरा वो पूरा सीन हुआ है फिजिकल फाइट का। तो वो चीज़ें मैंने कभी देखी नहीं। तो मतलब इतना वो अब मुझे समझ आ गया कि किस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, एंड मतलब इतना अच्छा बन के तुम कहीं नहीं जा सकते लाइफ। I agree and you know most of the times that if you're nice to everybody then you are definitely not a nice person. That's one thing. One thing that touched my heart, I'll come to Akansha 2.0 which has come in today's episode, but till last week a lot of people have empathized with your situation, okay? So have I, without again being like बहुत लोगों ने sides pick किया, where I feel like both of you have reasons to do what you guys have done or feel what you guys have been feeling, to be very honest. And I'll be very very honest, मुझे यहाँ पे कोई biases की बात ही नहीं है. I genuinely feel, if I knew you I would say the same, if I didn't know you I would still say the same. My point is that there was a point which touched my heart, which I messaged you about also, रात के 3:15 that I did. You spoke about abandonment issues. Do you feel like right now when you speak about the anger that has come out, or the anger that used to come out when you were a child, do you think somewhere एक connection है वो abandonment issues का कुछ childhood trauma से जो शायद तब रिजॉल्व नहीं हुए तो अब उस लेवल पे, या चाइल्डहुड से अब तक वो उसी वे में आ रहा है बाहर? या मतलब है एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो हुई हैं इन द पास्ट, तो वो
आई थिंक उनकी वजह से ना आई होल्ड, मतलब ऐसे खुद को होल्ड करती थी मैं कि टू नॉट ट्रस्ट एनीवन सो इजीली एंड टू नॉट लेट अ गाय कम इनटू माय लाइफ. मतलब ऐसा नहीं कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हुआ है, घर वर में और ऐसे क्लोज वंस के साथ ही हुआ है, बट बहुत ही कुछ मेजर हुआ था. तो उसके बाद से मुझे था कि नहीं, अकेले ही ठीक हूँ. एंड वो इमोशनल डिपेंडेंसी वाली चीज़ होती है ना, तो मैं किसी पे इमोशनली डिपेंड ही नहीं हो पाती थी. आई थिंक रिलेशनशिप्स में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इमोशनल एक दूसरे को Absolutely. इमोशंस दिखाओ, अपना एक्सप्रेस करो. मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, इमोशंस दिखाना इज लाइक बीइंग वल्नरेबल, विच इज़ लाइक अ बैड थिंग. It's a weakness. या इट्स अ वीकनेस, वो लगने लग गया था. बट नाउ तो आई हैव अंडरस्टूड कि नहीं, इतना रोई हूँ ना मैं शो में अब तो इट्स डेफिनेटली नॉट अ वीक थिंग. तो आई थिंक वो एक चीज़ थी जिसकी वजह से आई हैव ऑलवेज लाइक मैं थोड़ा सा बैक स्टेप कर लेती थी रिलेशनशिप्स के लिए. एंड वॉट एवर हैपेंड इन द शो प्रूव्ड माई पॉइंट. But do you think that can get resolved sometime? Are you making an effort to resolve it? नो नॉट, अभी तो मेरा पूरा आई एम फुल्ली फोकस्ड ऑन माई करियर एंड No, ओनली resolve your abandonment issue. abandonment issues. Because if you keep having this, Yeah. don't you feel that the effect of it will fall on every relationship that you have? यार सी, पहले जो हुआ था ना, इट वाज सो मेजर. उसके बाद दिस वाज तो सोने पे सुहागा वाली चीज़, तो अब तो वो डबल हो गया है. तो अभी मुझे अच्छा, आई विल हैव टू टेक माई स्वीट टाइम एंड वर्क ऑन इट. मुझे सनी मैम ने भी तब एक चीज़ कही थी कि मतलब अभी इसका मतलब अपना डोर क्लोज मत करो कि आज ये सिचुएशन है, इसका मतलब ये नहीं कि देयर इज नो समवन बेटर वेटिंग फॉर यू. ऐसा नहीं है, कोई होगा, सबके लिए कोई ना कोई होता है. बट मुझे ऐसा था कि नहीं, अभी नहीं चाहिए. आई एम हैप्पी बीइंग अलोन. आई हैव माई 2-3 फ्रेंड्स दैट आर रियल एंड आई एम ओके विद इट. तो अभी आई हैव माई प्रायोरिटीज, आई वांट टू फोकस ऑन दैट. ये सब मुझे लगता है अबैंडनमेंट इशूज़ चलता रहेगा. अभी रास्ते में व्हेन आई गेट मोर मैच्योर, थोड़ा काम में लगूंगी, आई थिंक धीरे धीरे आई. When you say that it never stemmed from a romantic relationship जो पिछला वाला Yeah. था, does it have to do with somebody extremely close to you in the family? या हाँ. Do people know about it around you? No, around me, हाँ. My close ones too. Have they ever come and like try to maybe make the situation easier for you to like get out of it? See, I will never ask you what it is. Yeah. Because I can clearly understand that you're not comfortable sharing Yeah. it. And that's not my point. My point is it's always important to have a safe space around you. There have been times, and I'm saying this, that I've been so anxious about my parents' health that during COVID I had the worst panic attacks. And my panic attack used to eventually evolve into anger on my parents. And I realized that I was being like a controlling child only for their benefit, but not in a very good way. Yeah. But they realized, and I addressed it, that I'm having anxiety related to your health and everything, and they gave me a safe space. So I'm asking like, and of course there are safe spaces which you can also go to. There are therapists today, and I completely respect that. Yeah. But sometimes when you get a safe space from your loved ones, then maybe you think that that's the second option, right? That did people around you put that safe space who know about it? आई थिंक ये ना मेरे साथ हमेशा हुआ है. जैसे शो में लोगों ने मेरे साथ अच्छे से मतलब मेरे नहीं थे दोस्त वगैरह अच्छे, बट बाहर सी हाउ थिंग्स हैव टर्न्ड आउट. मतलब लोगों को मैं पसंद आ रही हूँ, मतलब इतनी लार्जर ऑडियंस को Yes. पसंद आ रही. तो मेरा घर, मतलब वो वाला सीन भी ऐसे ही था कुछ कि वट एवर द सिचुएशन वॉज, उसका ना भगवान ने बहुत अच्छा एक मुझे वो सोल्यूशन दे दिया. आई थिंक द स्पेस आई वॉज इन, मेरे जो घर के दोस्त हैं, द 5-6 वेरी क्लोज फ्रेंड्स दैट आई हैव, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया है. एंड आई थिंक उनसे ही मैं सीखी हूँ, चाहे तुम कितनी ही मिजरी में हो, कितना ही रोना होना हो, पर मतलब जस्ट टू ऑलवेज हाउ टू ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड कीप लाफिंग अबाउट इट. वही चीज़ है कि अगर है ना तुम किसी चीज़ को ऐसे देखते हो ना, अगर तुम बहुत पास से देखोगे उसको, तो तुम्हें वो बहुत बड़ी लगेगी और तुम बहुत स्ट्रेस्ड होगे और तुम बहुत मतलब यू विल फील सैड अबाउट योर सेल्फ, अबाउट द सिचुएशन. पर उसको तुम बहुत टाइम बाद फ्यूचर में कभी याद करोगे या फिर तुम दूर से उसको देखोगे, तब वो लगेगा इतनी सी प्रॉब्लम थी, वो इतनी सी बात थी. तो वो मतलब they've helped me to see the bigger picture and to appreciate other things in life. तो I think घर पे जो भी situation है या फिर जो भी मेरी बाकी जो भी ख़राब relations हो, I think my friend circle has always made up for it. Yeah. But when you speak about your situation on the show, Yeah. what was your first reaction? Because ये वो show नहीं है जहाँ पे 24/7 cameras होते Yeah. हैं.
what was that reaction that you feel never made it to camera? आई थिंक वो जो ये एक था जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जब आई लव यू बोला उन दोनों ने एक दूसरे को, तो मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, एंड देन आई वेंट एंड आई सैट उधर जाके। फिर मैंने उसके लिए बोला, अच्छा बोला जो बोला, पर उसके बाद मैंने वो बोला ना चिड़िया उड़ वाली लाइन की, अब उसके पास मत खेलना चिड़िया उड़। तो फिर उसके बाद ना आई हैड अ मेंटल ब्रेक डाउन बहुत गंदा। तो फिर बहुत सब आए, सब ने मेरे को चुप वुप कराया, तो तब मैं फटी थी एक बार बहुत अच्छे से। तो वो नहीं डाला उन्होंने, विच आई एम ग्रेटफुल। वो एम्बेरस हो जाती मैं देख के पर वो एक चीज़ नहीं डाली। तो आई थिंक वो एक रिएक्शन आई वाज रियली शॉक्ड की। मुझे लग रहा था कि अभी क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आई वाज वेरी काम एंड पॉइज्ड एंड बहुत ग्रेसफुली हैंडल करी है सिचुएशन, और कि मुझे रोना कैसे नहीं आया, कि वो मैं सिर्फ स्माइल करती रह गई। नहीं, रोना मुझे बहुत आया था। मतलब इवन जब केक स्मैश हो रहा था, पूरा एपिसोड, अब बहुत घंटे शूट चला ना, 6-7 घंटा शूट चला, पूरे टाइम आई वॉज इन दैट स्पेस। सब पीछे मस्ती कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एंड पूरे टाइम आई हैड टीयरी आईज पूरे टाइम। मतलब वो कैमरे पे दिखेगा नहीं दिखेगा, आई डोंट नो, मैंने एपिसोड देखा नहीं है क्योंकि, बट मुझे No, you were upset. या Visibly upset. हाँ, तो मेरा पूरे एपिसोड में थी, और ऐसा था मोस्ट ऑफ द एपिसोड में मेरे आंखों से ऑलमोस्ट टपकने ही वाला था, बट मैं कंट्रोल कर रही थी। तो वो बहुत ही गंदा फीलिंग था, एंड मतलब इट फेल लाइक, तब टेन था मेरे बाजू में, आई रिमेंबर टेन ने मेरी बहुत हेल्प करी थी, उसने मुझे बहुत कंसोल किया था उस दिन। एंड इवन जब योगेश ने ये डिसीजन ले लिया था, तो ये स्टेज पे नहीं लिया था डिसीजन, इसने पहले ले लिया था। इसने जब इसकी और रूरू की बातें चल रही थी रूम में, तो आई एंटर्ड और उसने मुझे बोला कि आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर रूरू। आई गॉट अप एंड आई वेंट आउटसाइड। फिर मैं अपने रूम में चली गई। मैंने ये नहीं दिखाया, तो मैंने गेट लॉक किया, और फिर यहाँ से दिखाया कि वो मेरे गेट खोला उसने, आकांक्षा नॉक किया। तो पहले मैं खोल नहीं रही थी गेट की, मुझे बात ही नहीं करनी, चला जाए ऐसे ऐसे करके। फिर पर उन्होंने वो सब नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ गेट पे आया वो दिखाया पार्ट तक, क्योंकि वो स्पॉइल हो जाता ना कि उसने पहले ही लव बोल दिया है। आई थिंक उसकी वजह से उसको ज़्यादा हेट मिल रही कि ऑन स्टेज किया उसने पहली बार। आई मीन करना तो उसको नहीं चाहिए था ऑन स्टेज, बिकॉज इट वॉज अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर मी। और मतलब इट्स हैपनिंग ऑन नेशनल टेलीविजन, और मैं स्टेज पे खड़ी हूँ। तब तो ये भी पॉइंट नहीं था ना दिमाग में कि ऑडियंस देख रही है, तब ये था सारा क्रू दिख रहा है मुझे, यहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स दिख रहे हैं, उसमें मेरे दुश्मन भी है दैट वांट कि, जो खुश होते हैं कि मैं रोऊं वगैरह, और वो चाहते भी है कि मेरे साथ ऐसा ही हो, ये वो सब देख रहे हैं, साइड में जजेस सब देख रहे हैं, और तब उसने इतना गंदी सिचुएशन बना दी थी। तो वो एक चीज़ थी जिसके लिए मुझे बहुत ही बुरा लगा था, एंड आई एम अपसेट अबाउट इट। आज के एपिसोड में तो मैं बहुत फट गई इस बारे में, पर वो जब रूम में हुआ था वो पार्ट काट दिया था, तो आई थिंक दैट मेड थिंग्स वर्स फॉर हिम। But do you feel, you know, the internet is divided. I do not know the truth. Yeah. Because I have watched the show. Yeah. I haven't been able to watch everybody's lives. Yeah. Okay. Everybody is coming out and giving a side of the story, and somebody else is contesting it, and then again there is like, it's a war of words. Yeah. Right. I want to understand that a lot of people who are also in your favor and who are neutral audiences too, when they listen to the sides, some are claiming that this was a very pre-planned thing. Have you read any of those things? Yeah. What is your opinion on that? Because a lot of people are saying that when Yogesh saw the video, he was like, किसने दिया video, and people have spoken also, right, कि उसने खुद shoot किया होगा, किया right? था वो, हाँ. Do you what is your opinion on that, genuinely? I have started to believe it, that it was planned. शो में भी है ना, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि तुमने 6 महीने से आई लव यू नहीं बोला, ऑन स्टेज क्या ज़रूरत पड़ गई आई लव यू बोलने की अचानक से, मतलब विद इन 24 आवर्स ऐसा क्या दिमाग में स्विच आया कि आई लव यू ही बोल दिया जो कभी नहीं बोला। बिकॉज मतलब इवन आई थिंक कायरा वुड अंडरस्टैंड, अगर कायरा कभी आता है उससे पूछ लेना अभी, क्योंकि तब ना वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। शी न्यू कि हाउ टाइट एंड हाउ क्लोज वी वर एक्चुअली वर ऑफ कैमरा। मतलब वो हर चीज़ के लिए, मतलब वी वर सो एक दूसरे का ध्यान रखते थे, एंड एकदम बच्चे की तरह रखता था। वो सब बहुत सारी चीज़ें थी। मैं बीमार हुई थी बीच में, तो मतलब बहुत कुछ था, ठीक है। तो कायरा ने सब देखा है, एंड कायरा बीच में तो ऐसा हो गई थी कि गुल्लू मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा है ये सब, एंड वो इमोशनल हो गई। एक दिन तो वो रो भी दी थी कि आई फील, मतलब तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ व्हाट आई वांट, और मुझे नहीं मिल रहा है। बट देन सी व्हाट हैपेंड। तो आई फॉरगॉट द क्वेश्चन, क्या था? No, but my question was that do you think it was planned? या तो वो सब चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें थी, वो अगर मैं ध्यान में रखूँ कि एक दिन में नहीं 2 घंटे में ऐसा क्या सोचा है, उसने अपनी जैकेट ही दे दी। एंड
उस दिन उसका बर्थडे था, तो अब रूरू आ रखी है, सब सिचुएशन है, तो वो है ना वो कहीं दूर था, तो हम जहाँ पे हमारे लगेज वगैरह थे तो वो वहाँ पे था, एंड वहाँ पे अपेरेंटली रूरू भी थी, बट वो मुझे बाद में पता चला। मैं तो यहाँ पे वेट कर रही थी कि वो जब आएगा, डिस्पाइट वट एवर हैपेंड, जो भी बातें हुई हैं या फिर मैं कितना ही गुस्सा हूँ, मैं उसको बर्थडे विश करती हूँ, उसके लिए कुछ फ्लावर वगैरह कुछ लेके जाती हूँ, तो मैंने फ्लावर कहीं से ऐसे तोड़ के इकट्ठा करके मैंने उसको फ्लावर दिया था कि हैप्पी बर्थडे टाइप्स। तो मैंने जब दिया, वो आया, मैंने उसको दिया, एंड देन वी वर टॉकिंग थोड़ा सा, पर ही स्टार्टेड एक्टिंग अ लिटिल डिफरेंटली तब से, जब से वो नीचे आया उधर से लगेज वाले एरिया से। तो फिर बाद में मैं बोल रही थी कि क्या हुआ ये वो, तो वो किधर है ऐसा, तो मुझे फिर बाद में आई थिंक झलक ने मुझे बताया, किसी ने बताया कि रूरू ने ऊपर जैकेट पहनी है इसकी, एंड उन्होंने ऐसे हग वग करके एक दूसरे को बर्थडे विश की, मतलब उसने इसको बर्थडे विश किया है। तो तब मैं सो गई, मे बी आई थिंक ही हैज़ अ पिक नाउ। तो पर है ना, वही चीज़ थी कि पुराना जो 25 दिन था, अब वो 25 पूरे दिन थे, वो 25 दिन 1-1 घंटा 10-10 मिनट नहीं था ना, तो मैं तो सब कुछ याद कर रही थी कि भाई इतना कुछ था, इतना कुछ इसमें। 25 दिन में अटैचमेंट हो जाता है इतना जल्दी? अब हाल देखो मेरा तो हो गया था, मतलब शो में हाल देखो, मेरे लिए हुआ था। आई थिंक हमेशा से मैं ये बोलती थी कि करियर की वजह से मुझे बहुत गिल्ट होता था कि मैं रिलेशनशिप्स में नहीं पढ़ना। दिस टाइम मे बी बिकॉज करियर भी और लव वाला फैक्टर भी सेम ही एरिया में था, तो आई वॉज लाइक कि मैं गिल्ट फ्री होके ओपन अप हो सकती हूँ, एंड दिस इज़ नॉट मी वेस्टिंग माई टाइम एनी मोर। तो इस बार मैं एक्चुअली फ्रीली मैं ओपन अप हुई थी, बट it taught me that नहीं होना चाहिए था। You know, you just said this, that he made his pick, right? Yeah. I want to ask you hypothetically, Huh. if you were in Yogesh's situation, if Yeah. you were in his boots, if you have broken up with your ex 1 month before the show, but there has not been closure, and then you are on the show, and you genuinely feel a connection with somebody after spending 25 days of great moments between Yeah. the two of you, and then you have to be put in a situation to choose between the two, what would you pick? Or I will tell you what's the intention of me asking this Yeah. question after you answer. आई थिंक क्योंकि ये मैं सिचुएशन मैंने समझने की कोशिश करी, और मैंने ये एग्जैक्ट चीज़ खुद पे ट्राई करने की कोशिश करी है, मैंने अपने दोस्तों से ही पूछा कि तुम क्या करते हैं, मैंने ये भी पूछा तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करती, और सब ने यही बोला है कि बिकॉज एवरी वन नोज कि वो प्रियंका चोपड़ा वाली लाइन है ना, आई डोंट रीड माई बुक बैकवर्ड्स, तो वही आई डोंट थिंक मैं ये करती, क्योंकि 25 दिन का जो फ्रेश कनेक्शन है ना, वो वाली यादें मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है उस मोमेंट पे कि मैं सोचती नहीं कि हमारा पास्ट क्या था, मैं उसके साथ 1 महीने पहले मैं कैसी थी, क्योंकि अभी एवरीथिंग इज़ सो फ्रेश, वो वाली भी एक फैक्टर है कि मुझे इतना याद भी नहीं रहता कि, क्योंकि अभी अभी हुआ है, हम अभी 2 घंटे लिटरली 5 मिनट पहले ही तो थे हम साथ, लिटरली डोम में वो बोल रहा है कि हम अब किसी की नज़र ना लगे, ऐसा कुछ, और कोई बोलना, कोई इसको नज़र मत लगाना, नहीं, कोई इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकता, या वो सब कुछ हुआ है। बट पता है ये बाहर जो चीज़ें चल रही हैं, जो प्रूफ्स बाहर आ रहे हैं, अब ये तो अब आ रहे हैं ना, लोग अब निकालने लगे हैं। मैंने ये आधी चीज़ें पहले ही देख ली थी कि वो क्या है हैलोवीन पार्टी पे 31st वाली पे, तो वो सब देख के मेरे को ऑलरेडी लग गया था, और उधर भी मेरे को शो में लगने लग गया था, बिकॉज द रिएक्शंस, एंड अभी भी जैसे मैंने टीवी पे देखा, तो द वे दे आर लाइक कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, इट लुक्स लाइक डायलॉग्स। और रूरू तारो ये वो ऐसे जैसे उसने बोला, फिर वो वही सेम चीज़ बोल रहा है, मुझे डर लग रहा है अभी बात नहीं करना, फिर वो कहती डर क्यों रहा है, वो कहता कि तुझसे डर जाता हूँ ऐसा करके, जो सेम चीज़ वो ऐसा कुछ उसने मुझे भी बोला था पहले डेट पे। तो बहुत सारी चीज़ें सब मिला के ना ऐसा ही लग रहा है कि अब क्योंकि फ़ोटोज़ बाहर आ गई हैं वो कि वो अभी उसके बर्थडे पे थे ये सब, और मुझे पता है उसकी फ़्लाइट भी मिस हुई थी जब वो स्प्लिट्स आया था, तो उसकी 2 फ्लाइट्स मिस हुई थी, एंड वो लेट आया था बाकी सबसे, एंड रूरू का बर्थडे था 7th को, एंड वो 8th को आया था, या फिर 8th या 9th को आया था, पता नहीं, कुछ तो ऐसा सिस्टम है। तो फिर मैंने वो सब डॉट्स कनेक्ट किए कि हाँ, अब वही ना, श्योरिटी नहीं है, बट मुझे अब क्योंकि रूरू और मेरे भी म्यूचुअल्स हैं। You said that you don't think it is free. या क्योंकि उस तब तक नहीं आए थे ये सब, अब आ गया है, एंड अब सो वी आर इन द सेम इंडस्ट्री, वर्ड स्प्रेड्स,
they have come live once, both of them, Yogesh and Ruru, and they've also given an interview together. Have you gotten a chance? Because of course it must have Reels reached पे you. I've watched. Yeah, it must have reached you कि उन्होंने Yeah. क्या बोला है about the whole situation. Is there anything from that you feel was turned against you in a wrong way, or is there anything that you feel the सच्चाई is different and that was not presented properly? आई थिंक द स्क्रिप्ट वॉजंट मैचिंग. दोनों अलग अलग चीज़ें बोल रहे थे पूरे टाइम. और पूरे टाइम है ना, एक दो क्लिप्स जो सबसे ज़्यादा वायरल हुए हैं कि वो कुछ बोल रही है, उसने कुछ गलत बोल दिया और फिर योगेश तो वैसे बैठा है और फिर वो बोल रही है कि फिर उसने कुछ अपना कवर अप करने के लिए, अरे नहीं वो था ना तेरे पास, फ़ोन था ना वो, हाँ मुझे डरा दिया तूने ऐसे. मतलब दे आर बैड एक्टर्स फर्स्टली. तो दिख गया मुझे. योगेश इज़ अ गुड एक्टर बिकॉज ही एक्टेड प्रिटी वेल शो में. मेरे साथ तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करी उसने. पर रूरू इज़ अ वेरी बैड एक्टर. He made this point that he never said I love you to you, या right? How valid do you आई हैव think नेवर that- सेड आई लव यू टू माई मदर. मतलब डजंट, 3 शब्द डजंट जस्टिफाई. और व्हेन ही क्लियरली अभी भी वो यही बोलता है कि फीलिंग्स थी. क्या होती है फीलिंग्स? सी अब तो आई डोंट, अब क्योंकि ही इज विद समवन एल्स तो अभी ये चीज़ों का मतलब नहीं है. बट वो इंटरव्यूज़ में खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं ऐसा लग रहा है. तो तब मुझे ऐसा फील होता है कि आई फील बिट्रेड कि मैं अभी तक है ना आई वॉज एबल टू मूव ऑन कि चलो ठीक है वो आई, उसको प्यार याद आ गया. अगर ये सिचुएशन होती तो ये बेटर था. पर अगर प्लान करके आए वो तो बहुत ही गलत है. वो तब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है. दैट आई फील. Do you hold anything against Ruru? अगेंस्ट रूरू आई डोंट थिंक अबाउट रूरू ओनली. मतलब मैं उसके बारे में सोचती ही नहीं हूँ कभी. मतलब शी इज़ अ कंप्लीट स्ट्रेंजर फॉर मी. शो में भी ना ऐसा लगता था क्योंकि अब है ना शो वालों को भी हमें एक दूसरे के अगेंस्ट ही दिखाना है. तो जब भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट तो वो राइवलरी आ ही गई और वो नेचुरली भी आती ही. तो बीच में हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं ज़रूर से. बट कुछ चीज़ें होती हैं जो रूरू ना जब उसके पास कुछ कमबैक्स या पॉइंटर्स नहीं होते ना तो फिर वो बहुत ऐसे गंदी लैंग्वेज यूज़ करती है. फिर किसी की शक्ल, सुजैन की शक्ल पे बोला उसने, और बहुत अबे चल 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 ऐसे करके बहुत गंदे तरीके से लेट डाउन करके लोग से बात करती है. तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती थी. तो तब मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाती थी. तो आई डोंट नो, कुछ ओपिनियन नहीं है मेरा उसके बारे में. अभी कोई ओपिनियन है आफ्टर द लाइव्स? आफ्टर द लाइव्स आई कंप्लीटली हेट दैट गर्ल. हेट क्योंकि फर्स्टली शी कैरेक्टर असैसिनेटेड मी इन फ्रंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. उसी लाइव में या उससे पहली वाली लाइव में उसने ये बोला था कि मैंने कुछ उसके बारे में उल्टा सीधा बोला है. तो बेसिकली आई वेंट लाइव और मेरी दोस्त ने पीछे से एक कमेंट पास किया जो कि पूरा इंडिया बोल रहा है एट दिस पॉइंट. तो आप सिर्फ मेरे को मत बोलो. पर सबने बोला कि अगले बार भी वो किसी की एक्स बन के आ जाएगी क्योंकि दिस वॉज द सेकेंड टाइम, अगर अगली बार थर्ड टाइम होगा. तो दिस वॉज अ फनी थिंग जो शो में भी सबने बोला है पूरे टाइम. तो ये मेरी दोस्त ने बोला और मैंने उसको यही बोला कि भाई पचास मरवाएगी ऐसे करके. तो वो चीज़ अब लाइफ पे चली गई. उसका उसने एडिट देख लिया होगा. फिर उसके बाद अपनी लाइफ पे आके बोलती कि नहीं ये नहीं बोलना चाहिए था, फिर मैं भी बोलूँगी ये वो. एंड द नेक्स्ट डे वो ठीक है, अपूर्वा का अगर तुम्हें साइड लेनी थी एज अ गर्ल तो उसमें तुम एक दूसरी लड़की की इज्जत तो कम्प्लीटली ख़राब कर रहे हो. जो कि मतलब लिटरली मैं उसका भाई बोलती हूँ. मैंने उसको बोला है कि इस बार मैं राखी बांधूंगी तो क्या गिफ्ट देगा. हम ये बातें करते हैं घर पे. उसकी मम्मी और बहन के साथ मैं अभी रह रही हूँ, चीकू दीदी के. मतलब हमारा ऐसा हो गया है कि मुझे हमेशा से एक बड़ी बहन चाहिए थी, उनको एक छोटी बहन चाहिए थी. हम ये बातें करते हैं. उसकी जब ये पूरा सिचुएशन हुआ आंटी ने मुझे कॉल किया और सबसे पहले मुझे यही बोला कि तू कहाँ है बेटा, घर आ जा जल्दी से. और ये है ना जो इसने ये बदतमीज़ लड़की ने ये जो बकवास करी है ना कि बदतमीज़ लड़की, ये सब मैं बोल रही हूँ. बट ये जो भी बकवास करी है तेरे और सौरभ के रिलेशन पे, मतलब इससे वर्स तो कुछ नहीं हो सकता. दिस शोज हर अपब्रिंगिंग और वो क्या कैसे रहती, किस माइंडसेट में रहती है. तो वो दिख गया है मुझे. एंड उसके बाद तो आई डोंट वांट हर, आई जस्ट डोंट वांट टू सी हर फेस एवर अगेन. मतलब ऐसी नेगेटिविटी तो दूर ही रहे क्योंकि कोई इंसान, पूरा इंडिया सब जानते हैं कि हमारा कैसा बॉन्ड है, कितना प्योर बॉन्ड है. और उसमें उसने मतलब कलंक लगाने के लिए, मेरा नाम बदनाम करने के लिए उसने ऐसी चीज़ बोल दी कि अपूर्वा, मतलब उसने नहीं बोला, अपूर्वा ने बोला. एंड शी वाज सिटिंग बिहाइंड हर और उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया. शी वाज जस्ट देयर. अपूर्वा said that? अपूर्वा सेड कि वो उसके घर में आती थी, मुझे तो ये पता नहीं था तो अब देखो ऐसा कुछ. मतलब शी मेंट कि मैं और सौरभ उसके घर में बिना बताए रहते थे, जो कि नहीं था.
पहली बात तो वो दोनों का घर था, दोनों रेंट देते थे। उसी घर में है ना मेरे से पहले योगेश भी रहा है, तो योगेश पे भी उंगली उठा लो फिर आप कि योगेश और सौरभ के बीच में भी कुछ चल ही रहा होगा। अभी जैसे मैं शुभांगी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन अभी, तो शुभांगी के घर पे सब रहते हैं, गुल्लू आता है, सब रहता है सबके। तो तुम खुद अभी हर्ष वैशाली के घर पे रह रहे हो, हर्ष भी तो लड़का है ना, मैं बोलूँ कुछ? मतलब कैसी छोटी बात है ये, मतलब दिस इज द 21st century, क्या बातें कर रहे हैं अपन। But you know, I spoke to her. Yeah. I don't know where I maybe I missed this because a lot of people are actually also telling her that how can you put Akansha down and Yeah. Akansha side of the story down, because I think she said something where I exactly I cannot phrase it, but Yeah. the meaning of it was that everybody is empathizing with you for 25 days of Yeah. being heartbroken after being heartbroken after 25 days of connection. Yeah. And people Glycerin are लगा के। supporting Saurabh Yeah. when a 9-year relationship has broken. Yeah. That line I do feel, you know, sometimes I understand ये your किसने fans. बोला? Yeah, Apurva ने. Yeah. But it was not meant to. I don't think it was meant to demean you in any way. Like when I was hearing it, I felt like she's comparing the two because she's getting a lot of hate. नो उसके बाद शी सेड कि कोई भी लाइव में आके ग्लिसरीन लगा के रोएगा तो फिर तुम उसका साइड लोगे कि तुम्हें भी आ जाओ ग्लिसरीन लगा के, ऐसा ऐसा। तो शी वॉज डिमीनिंग मी, उसने पूरा प्रॉपर सब कुछ बोला है। पर मेरा पॉइंट ये था कि चलो अपूर्वा तो जैसी है वैसी दिख गया अभी कि मतलब 9 साल तुम किसी इंसान के साथ थे। मुझे पता ये सारी बातें ना मुझे सौरभ ने पहले ही बता रखी थी कि उसके साथ क्या हुआ था, उसको मारा था, ये जो भी, तो मुझे पता था। और उसके बाद भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो जो आई है लाइफ, और उसने अपने 9 साल का, भाई वो होता है ना कि 9 साल तुम किसी के साथ रहे हो, तुमने कितना फ्यूचर सोचा होगा, उसके बाद तुम उसका पूरा करियर बर्बाद करने के लिए तुमने क्या कर दिया भाई इन अ स्प्लिट सेकंड। और किसकी बात सुन के? रूरू की। कौन है वो? मतलब अब तो वो यही बोलती फिर रही है कि नहीं रूरू और वैशाली उधर उन्होंने मेरे को थोड़ा पुश किया कि यू शुड से टॉक अबाउट इट, ये वो मैंने बोल दिया। अब रूरू से मेरा देखो, अब पता है क्या आके बोलेगी वो कि ना ये आकांक्षा वाली चीज़ मैंने तो बोली नहीं है, ये तो अपूर्वा बोल रही थी। बट यू वर इन द लाइव, यू वर सपोर्टिंग हर। यही सेम चीज़ उधर हुआ विला में भी कि दीक्षा ने मेरे कपड़े फेंके, तो तब मैंने ये नहीं देखा कि किसने फेंके, मुझे बस पता था कि बाहर सारे गिरे पड़े हैं और दीक्षा और ये रूरू खड़े हैं एंड दे आर लाइक 2 ईविल लड़कियों की तरह ऐसे खड़े हैं और स्माइल पास कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो और बुलीज की तरह। तो मैं आई अपने कपड़े उठाने, तो मैंने देखा दोनों हैं, तो मुझे लगा कि दोनों ने किया होगा। बट बाद में वो कहती कि नहीं नहीं मैंने फेंके नहीं थे, बस मैं खड़ी थी, मैं वहाँ पे उसके सपोर्ट में आई थी। कौन बोला ये? रूरू। तो व्हाट्स द डिफरेंस? But what happened between you and Diksha that because you guys were friends, right? Yeah, we were She best. felt so bad, like in the episodes also when the entire thing pans out and it plays out. She is possibly the one who's always looking out for you. Like I always see Yeah. the episodes and she's always everybody is Till now. screaming yeah and all. She's only looking Yeah. at you. What happened? तब What तक went तो wrong? वी वर बेस्टीज। मैं उसको बहन मानती थी, वो मुझे बहन मानती थी। आई थिंक समथिंग हैपेंड, एक स्विच हुआ जब हिमांशु, आई थिंक हिमांशु ही आया हमारी दोस्ती के बीच में बेसिकली, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जब ऐसा एक बार हुआ था कि हिमांशु और दीक्षा का कुछ स्टैंड नहीं होता था, जो भी हिमांशु बोलता था वो हाँ हाँ करती थी। तो हिमांशु ने, और जब हिमांशु मेरे से अगेंस्ट में लड़ता था और कोई गलत बात के लिए लड़ता था, जब एक बार वो मुझे ना उसने उस बात के लिए छोड़ा ही नहीं ज़िंदगी में कभी, जो मैं उन्हें वो स्माइल कर दी डोम में, 3rd डोम में, कि तू हंस रही थी, मतलब तेरा ईवल प्लान था, तू हंसी कैसे और ये वो, तो यू शुड अपोलोजाइज टू मी। तो तब अब मैं पूरा सीजन सबने देख लिया कि जब भी कुछ ऐसी ट्रोमेटिक चीज़ होती है मैं हंसती ही हूँ, मैं स्माइल ही करती हूँ। यही मैं उधर समझा के उनको थक गई। तो एक हमारा हुआ था, तब वो कैमरा पे हुआ था पर उन्होंने डाला नहीं कि मैं, दीक्षा, हिमांशु और योगेश हम रूम में थे, तो कन्फ्रंट कर रहा था हिमांशु तो हंसी क्यों थी ये वो विला मर्जर के बाद। तो मैंने उसको बोला कि भाई दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, जब भी कुछ बुरा होता है तो मैं उसको स्माइल से छुपाती हूँ। और वो डिसअपॉइंटमेंट वाली स्माइल थी कि भाई वाह यार कोई समझ ही नहीं रहा, ऐसे वाली स्मेल थी। मैंने उसको बहुत समझाया, वो समझा नहीं उस टाइम। फिर ना मेरे आंसू निकल गए, तो जब मेरे आंसू निकले तब उसने कहा हाँ ठीक है रो मत, आई अंडरस्टैंड ये सब। दीक्षा भी वहाँ थी, उसने भी पूरा समझा सब कुछ। उसी सेम दिन डोम हुआ, हमने वी हग्ड आउट, हमने हग वग किया, हमने कहा कि हाँ ठीक है अब इस बारे में बात नहीं करेंगे। उसी दिन फॉर फुटेज वो डोम में उसने वो बात निकाल दी। और तब हाँ हिमांशु, जिस दिन डोम में रूरू आई थी, तो उस दिन उसने बोल दिया कि भाई तो उस दिन या तो ऐसी बात थी। तो मैं ये बोल रही थी भाई उसके बाद से यू फील दीक्षा के साथ वो वहाँ से हुआ। और एक ये था कि टिल नाउ आई हैव टू ओनली सीन like both of you are sweet only like very like अभी कल परसों के एपिसोड्स नहीं देखे आपने? फिर मतलब अब से बिगड़ने लग गया हमारा। नहीं आज का नहीं देखा मैंने।
आज से तो पहले ही बिगड़ गया था, एक बार हुआ था अभी वो जो हाँ, टास्क एक बार वो बात हुई कुछ एक रूम में बैठ के या वो- तो ऐसा होता था कि जब भी आए जैसे रूरू आई तो आई एम लाइक इमोशनली आई एम सफरिंग, स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ, जो भी है मैं रो रही हूँ। एक बार मैं 4 बजे उठी रात को, मैं अचानक से उठ के ना रोने लग गई। मैंने या तो कुछ बुरा सपना देखा या कुछ था, बस मैं 4 बजे रैंडमली उठी, 4-5 बजे, और मैं अंधेरा था बाहर, और मैं उठ के ऐसे वो होता है ना सुसुक के रोते हैं कि आवाज़ ना जाए, क्योंकि दीक्षा मेरे बाजू में सोती थी और ये सुजैन दूसरे बेड पे, तो मैं रो रही हूँ। तो मैंने कोशिश करी ना आवाज़ जाए उसको, पर उसको चली गई। तो उसने ना तब उसने उठी वो, तब हमारी थोड़ी इक्वेशन ख़राब होने लग गई थी, पर फिर भी वो उठी, उसने पानी वानी ला के मुझे दिया, और फिर उसके बाद मेरे पास में आके बैठी। फिर सुजैन भी उठ गई उतने में, फिर वो मेरे को कंसोल कर रहे हैं, तो तब मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। तो पर मुझे कंसोल करी उसने, लिटरली एक बार कंसोल किया होगा कि कोई नहीं। उसके बाद शी स्टार्टेड रैंटिंग, मतलब खुद की चीज़ बोलने लग गई। रात के 4 बजे मैं रो रही हूँ, क्योंकि मेरा कनेक्शन ये जो भी नाटक हुआ है उसमें बीच में, यार तूने मेरे साथ ये बहुत गलत किया, मेरे साथ डोम में जब भी हुआ, मैं रो रही हूँ लिटरली, मेरे आँख लाल हो चुकी है, और वो बोल रही है कि नहीं तूने मेरे को ऐसा कैसे बोला, ये क्यों किया, वो क्यों किया। और वहाँ पे सुजैन बोल रही कि बहन तू लिटरली अभी तो रुक जा यार, अभी क्यों बोल रही है खुद के बारे में, अभी तो कम से कम उसका सुन ले। तो वो ये करती थी। डोम में भी जो हमारी और कैमरा बात हुई थी, तभी वो खुद का नाम क्लियर करने के लिए ना वो सुनती नहीं है, कि मतलब शी ऑलवेज, मतलब शी विल किक यू व्हेन यू आर डाउन, वो वाली चीज़ हो गई थी। Was there a physical fight between the two of you? या अभी तक आई स्टिल हैव मार्क्स, ये रहा। एक मतलब पूरा आई थिंक खून वून निकला था मेरा, तो पूरा बहुत ही गंदी मारपीट हुई थी। फर्स्ट उसकी ने हाथ उठाया था, आई वाज तो चार्जिंग ऑन हर, क्योंकि उसने एक बहुत ही गंदी चीज़ बोल दी थी कि अपेरेंटली मैंने उसकी मम्मी पापा के बारे में बहुत बुरा बोला है, जो कि इट वाज अ लाई, कंप्लीट लाई, अटर बुलशिट। क्योंकि ऐसी चीज़ें तो मैं दुश्मन को भी ना बोलूँ, ये मैंने बोला है कि ऐसी चीज़ें तो हम दुश्मन को भी नहीं बोलते, जो वो बोल रही है कि मैंने उसके मम्मी पापा को बोला है। और जब ये वो चल रहा था पूरा सिनेरियो, तब मैं उसको यही बोल रही थी कि भाई दीक्षा, तो ये मत भूल कि एक टाइम पे हम इतने अच्छे दोस्त थे, मतलब उस चीज़ की रिस्पेक्ट रख के कम से कम इतना नीचे मत गिर फॉर फुटेज, फॉर व्यूज़, या फिर टू लेट मी डाउन, टू हैव अ कम बैक। You know, you said something wonderful that रूरू ने आपके और सौरभ के एक रिलेशनशिप में दाग लगाने की कोशिश की, अपूर्वा ने, जैसे आपने बोला लाइव में। Yeah. So you have a beautiful relationship with Saurabh. Yeah. Firstly, I want to ask you that Saurabh knew about Ruru, right, on Yeah. the show. Did you ever ask him that? Did you feel betrayed at that point? तब सो सीन ऐसा था कि शो में ना हमेशा सौरभ यही बोलता था कि मेरी योगेश प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी तू है, फर्स्ट प्रायोरिटी योगेश है, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो पहले मिला, वो पहले से जानते थे, और जो भी वो भाईचारा वाला सीन। तो मैं और सौरभ इतने क्लोज नहीं थे शुरू से। जब रूरू की एंट्री हुई उसके बाद से सौरभ मुझे जब खुश करने आता था, तब से हम स्ट्रॉन्ग होना, हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुआ था। तो निहारिका सौरभ आते थे दोनों एकदम वैसे होता है, मम्मी पापा जाते हैं बच्चे का मूड ठीक करने, तो वो करने आते थे, मुझे और नॉडी बुलाते थे, तो वो तब से हमारा स्ट्रॉन्ग होना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। लास्ट में एक पॉइंट आया कि ही हैड टू मेक अ डिसीजन, और उसने तब मुझे चूज़ नहीं किया, तो तब हमारा रिलेशन ख़राब हुआ था, और तब थोड़ा सा हुआ था, चीज़ें ख़राब हुई थी। बट देन जब मैं वापस आई, मैंने क्लियर किया कि मतलब जो घर वाली फीलिंग मुझे उसके साथ आती थी ना, कि जब भी कुछ बुरा होता था, नहीं मेरे को सौरभ एक हग कर देगा ना, ऐसा लगेगा, ऐसा वार्म हग करता था। तो मैं और सुजैन ये बोलते थे, भाई बहुत स्ट्रेस है, आज एक बार सौरभ को गले मिल लेते हैं भाई क्योंकि वो एकदम ऐसा लगता बड़ा भाई तुम्हें वो कर रहा है कि प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसा करता था वो। और बाहर आने के बाद ना उसने मेरी बहुत हेल्प करी है, शो में तो करी है, पर बाहर आने के बाद हम और स्ट्रॉन्ग हो गए। जब मैं बॉम्बे पहली बार आई, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि शो में कंटेस्टेंट सारे बाहर भी अगेंस्ट हो रखे हैं। अभी भी जैसे आई हिट 1 मिलियन, तो सबके मतलब रूप दिख गए, सब कैसे एकदम अचानक से चढ़ने लग गए। रोज़ लाइव होती है एक मेरे अगेंस्ट, एक नहीं कभी कभी 2-3 भी हो जाती है। मैं 2 घंटे में फ़ोन छोड़ दूँ तो मुझे पता है कि कंट्रोवर्सी आ गई होगी, अब तक नहीं, तो मैं देखती हूँ आ जाती है। बट कभी कभी लगता है कि इनको रिस्पॉन्ड करूँ, या लगता है अभी लगता है कि यार हर दिन जब 2-2 हो ही रहा है तो मैं चुप ही बैठ। हाँ, ये अब होने लगे कि अब रोज़ ही हो रहा तो कितना ही बोलूँगी, अब नहीं बोलती, अब मैं देखती भी नहीं हूँ। दैट्स द बेस्ट पार्ट। आई वाज गोइंग टू
to suggest that. Why you didn't Yeah. see? It's okay. अब तो मतलब मेरे पास तो वो आ जाता है ना, फीड में आ जाता है, तो कभी कभी पहले तो बहुत देखती थी कि भाई सौरभ को जाके बोलती थी भाई ऐसा कैसे बोल सकती है, भाई झूठ ही बोल रही है मतलब स्ट्रेट अप कि मेरा नाम गंदा करने के लिए। तो वो बोलता था भाई इतनी जनता है उसमें से देखो सब तो प्यार नहीं करेंगे ना, 80% 90% प्यार करेंगे, 10% हेट करेंगे, तो वो तो झेलना पड़ेगा ना। ऐसा करके बहुत समझाया उसने, तो उसी ने ये पूरा नॉनशलांट होना पड़ेगा थोड़ा, वो सारा चीज़ मेरे में डाला था, और अब तो ना वो नेचुरली आ गया है, क्योंकि तुम रोज़ हेट कमेंट्स देखते हो। अब देखो दीक्षा आती है लाइव, ये रूरू आती है, सौंदर्या आती है, सदफ आती है, सिमरन भी आई थी, हाँ सब आए तो, और अनुष्का, सब आए, सब ने बोला कि आकांक्षा के फैंस के थ्रू हमें हेट मिल रहा है। हाउ डू यू नो आकांक्षा के फैंस के थ्रू? न्यूट्रल ऑडियंस भी होती है ना, उधर लिखा है सब, हर फैन पेज पे जो मैं उनको देखती हूँ जो उनको हेट दे रहा है, सब पे नहीं लिखा होता आकांक्षा फैन पेज, न्यूट्रल ऑडियंस भी होती है। उनके प्रोफाइल पे जाके मैं क्लिक करती हूँ, नॉर्मल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीने वाले लोग होते हैं ना, वो भी होते हैं उसमें, वो भी तुम्हें पसंद नहीं कर रहे तुम्हारी हरकतों की वजह से। तो वो ऐसा बोलने की कोशिश करते थे कि नहीं आकांक्षा हेट फैला रही है, वो चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आई। तो मैंने कहा ठीक है कितना ही समझाऊँ, कितना ही कर लूँ। उसने मेरे को, सौरभ ने समझाया, तो अब मेरे को ऐसे समझ आ गया जितना तुम, ये दीप्तांशु ने बहुत सही लाइन बोली थी किसी पॉडकास्ट में कि वो रॉकेट जब ऊपर जाता है, वो नीचे आग जो जलती है ना, उससे ना नीचे वो सबको जला के चली जाती है। तो अभी बस वही हो रखा है, नीचे वो सब जलने वाले जल रहे हैं। You know, because you said Diptanshu, Yeah, he is my most favorite I male know. contestant. I get you. क्या ही दिमाग लगाया है उस बंदे ने। Dimag, he's smart, Funny. he's funny, he's intelligent, and he never misses a call from me, and he has helped me a lot. I think थर्ड वाला पार्ट आपके दिल पे छुआ है। He has helped me a lot. हाँ, I genuinely mean it when I say that. And you know, बीच में जब मुझे पता चल गया था, and I was so invested, I was telling Urfi this, that I think I should stop watching this, because this is the first season I watched, and Yeah. तब मुझे पता चल गया था before it came out in news also, that oh maybe he had a girlfriend outside and everything while on the show. yeah, I messaged him because I liked him so much that I felt like क्यों I किया? like him, but now after this, how can I like him? हाँ. I sunowed him, and he gave me a very beautiful, like he explained his point of view, हाँ. and then I felt like he was very respectful. Yeah, At that point, That I he don't is. think he needed to be, because he and I didn't even know each other. Yeah. We still never met, but it's just that there's a deep sense of respect from either side, and I Yeah. really like This how तो he even I have plays. experienced. So ना वो सौंदर्या का पार्टनर था ना, इसलिए आई थिंक हमने इतना इंटरेक्ट नहीं किया, बट मुझे उससे करना था, पता है मुझे उसको, मैं इसको सुजैन को बोलती थी मुझे दीप्तांशु जैसा दोस्त चाहिए, मुझे गुल्लू जैसा दोस्त चाहिए रहता है सबको एक। हाँ यार, गुल्लू तो मुझे तो हाँ. मुझे गुल्लू भी पहले I used to love him before Yeah. this show. In the beginning when he said something against women, then I was like, why is he doing this? हाँ. Oh my god, this Dilli wala thing, don't do. हाँ. And then again I've started liking हाँ. him, because whoever, no, I will not say the last part. I just like him. I just like अभी him. कुछ निकलने वाला था स्पाइसी, बट ठीक है। Basically, I just feel like I was taking a stand for a person who I don't like anymore. So Okay. I think it's better that I am on Gullu's side. Like I'll always feel he's funny. That's why I like him. या ऐसा पता है शो में भी ना, जब मैं आई वाज ऑन, मतलब सबसे घटिया दिन जो मेरे जा रहे थे, तब वो आके मुझे बोलता था सुन अभी मजाक बना लो, सिचुएशन क्या है 2 दिन बाद आऊँ। और मैं कहते थे सुन प्लीज अभी बना ले, और दुख गुल्लू ने परसेंटेज दिया कि नहीं अपने YouTube अर्निंग्स से तुमको? हाँ उसको देना पड़ेगा अभी। अक्कू तारा करके तो पूरा भैया पूरा फैला रखा है। भाई वो क्या अपना सूटकेस की तरह वो है, स्पीकर लेके जा रहा हूँ गाइस मैं तारा ढूंढने, क्या कंटेंट। वो मेरे साइड में बैठा हुआ है उसका, फिर उसके कुछ तो 100K वगैरह बढ़ गए, तो मैं ऐसे देख रही हूँ शर्म है। उसने कहा नहीं, इतना चिल बंदा है ना वो, इतनी चिल सिचुएशन बना दी उसने, मतलब तब ऑब्वियसली वो वाला एपिसोड देखकर तो वो दिन बहुत डिफिकल्ट था, तो पर उसने ही मेक श्योर, पता है वो एक बाउंड्री सेट करके रखता है कि नहीं एक पॉइंट के बाद नहीं रिकॉर्ड करना, या फिर ये वो जहाँ पे मस्ती में उसका मूड भी ठीक हो है या फिर मेरा भी हो रहा है, तो वो चीज़ वो कर देता है, डाल देता है, बट एक पॉइंट होता है कि उसके आगे नहीं करना चाहिए, वो नहीं करता। हाँ यही हाँ. सी दोस्त जब हो ना, मेरे शो में बहुत बोला गया है कि अरे दोस्तों में मस्ती मजाक तुम कभी अलाउ करते हो, कभी अलाउ नहीं करते, ये बात नहीं है। हाँ. मेरा पॉइंट है ना, अगर आप सच में दोस्त हो, अगर मैं आपका दोस्त हूँ और मैं मस्ती करूंगा, आप भी मेरे साथ मस्ती करोगे, शायद एक लिमिट के ऊपर ही मस्ती करोगे, पर अगर आप देख रहे हो कि दैट मस्ती ऑन एनी डे, मे बी इज द सेम मस्ती जो मैंने एंजॉय किया होगा 2 दिन पहले, बट थर्ड डे कुछ और चीज की वजह से आई एम अपसेट एंड इट्स अफेक्टिंग मी, इफ यू आर अ फ्रेंड यू विल स्टॉप।
वो बाउंड्री लाइन और फुल स्टॉप डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंसान तो वो अच्छा है, हरकतें थोड़ी उसकी क्वेश्चनेबल रहती है। पर है ना, दीप्तांशु के लिए ये मेरे को था कि मुझे उसको दोस्त बनाना है ये वो, पर वो उसके साथ था ना सौंदर्य के साथ, तो मेरे को वो भी सौंदर्य ने अब जब सौंदर्य की बात करी थी, हाँ। मुझे अचानक से याद आया, देयर वाज दिस होल, इज दिस विद सौंदर्य दैट यू गाइस मेट एट सम पार्टी एंड शी स्लैप्ड यू, इज दैट ट्रू? ना स्लैप लैप नहीं हुआ, पार्टी में मिले वहाँ पे, पर ही उसने कन्फ्रंट वगैरह किया था अपना पूरा सिचुएशन का। अब ये चीज़ ना मैंने बहुत बार बोल दी है वैसे तो, अब वो कभी मानेगी नहीं, मैं भी वो जो गलत चीज़ बोल रही है वो भी मैं भी कभी नहीं मानूंगी, तो वो चलता रहेगा। बट आई थिंक ये पूरे सिचुएशन की वजह से उसको क्लाउड तो बहुत बढ़िया मिल गया है, क्योंकि वो अभी तक मतलब वो उसका चुप नहीं हुआ है ये चीज़। नो बट क्या हुआ था एक्चुअली? basically- आई रेड समथिंग एल्स, मे बी रेडिट इज वेरी, नहीं, स्लैब तो दीक्षा ने किया है शो में। अच्छा हाँ, वो मिक्स कर दिया आपने। तो सौंदर्या बेसिकली, मैं हिमांशु और हिमांशु की मम्मी से बात करी थी तब, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज इंटरैक्टिंग विद हिमांशु आफ्टर द शो। तो हिमांशु उस दिन बहुत अच्छा था, वो अच्छे से बात कर रहा था, वो ऐसे ही है, बाहर नॉर्मल लोग ही बात करते हैं, अंदर पागल हो जाते हैं शो में। तो उसकी मम्मी से मैं बात कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, तो वो साइड में से वो आई, उसने मेरे को टैप किया शोल्डर पे, मैंने देखा, उसने कहा ओह सॉरी आई थॉट इट वाज सुजैन। सुजैन और मैंने एकदम डिफरेंट कपड़े पहने हैं, साइड में से ऑब्वियसली दिख रहा है पूरा कि मैं ही हूँ। आके उसने किया, फिर मैंने देखा, फिर साइड में सब ऐसे हो गए, ओ सौंदर्या नकांक्षा, हमारी ऑनलाइन बीफ चल रही थी तब, तो सब हंसने लग गए। तो फिर सब कहते हाथ मिलाओ ऐसे करके, तो हम करने लग गए, हाथ मिलाया हमने। तो उसके बाद वो उसने बोलना चालू किया कि यार तू अपनी लाइफ में क्या बोल रही है, ये वो करके उसने लड़ाई स्टार्ट करी कि तू ऐसा कैसा बोल सकती है ये सब। तो मैंने भी बोला कि भाई तूने लिटरली, उसने एक डेडिकेटेड लाइव रखी थी टू स्प्रेड हेट ऑन मी, मतलब एक बंदे को बुलाया और मेरी इतनी गलत बातें बोली है जो मैंने कभी नहीं बोला है। शी सेड कि मैंने उसके पापा को बंदर बोला है, नहीं कुछ गोरिल्ला बोला उसने, कि मैंने उसके पापा को गोरिल्ला बोला है, और एक और बोला कि मैंने अपेरेंटली क्या था एक, कि मैंने सुजैन को बोला है कि एक स्टील की रॉड से सौंदर्या के सर पे मारते हैं और उसका सर खुल जाएगा शो में, ये मैंने बोला है। मतलब ऐसी बातें सुनने में आती है ना मुझे बाहर, जस्ट टू लाइक ड्रैग मी डाउन, मेरा नाम खराब करने के लिए वो झूठ ही बोल देते हैं ना, तो वो चीज़ मुझसे नहीं सही जाती। तो मैं उसको बोल रही थी, तो यू आर क्राइंग एट द पार्टी? या तो वो कन्फ्रंटेशन हो रही थी उतने में, तो अब वो ऐसे हो गया कि वो मान नहीं रही। मैंने कहा भाई तूने ऐसा क्यों किया, ये वो, उसने कहा तूने ये चीज़ बोली है। मैंने कहा नहीं बोली, तेरे पापा के बारे में कभी नहीं बोली, ये रॉड वाली चीज़ कभी नहीं बोली। उसने कहा नहीं सुजैन ने बोला है, तूने बोला है करके, तो चढ़ने लग गई। फिर आगे और लोग भी आ गए, तो सब है ना, फिर मतलब ऐसा मुझे वो वाली फीलिंग आ गई थी कि विला में एक टाइम था जब कोई, मैं इतना समझाती थी कि ये चीज़ मैंने नहीं करी, पर कोई नहीं मानता था, सब अगेंस्ट में थे कि नहीं ये झूठ बोल रही है, ये ऐसी है। तो वो वाला मुझे फ्लैशबैक आ गया, तो वो सब मैंने हिट किया कि भाई बाहर आकर भी स्प्लिट्स खत्म नहीं हो रहा है मेरा, अभी भी ऐसा लोनली वाली सब है मेरे आजू बाजू, फिर भी एकदम अकेला वाला सिचुएशन हो गई। तो तब मैं थोड़ी इमोशनल ओवरवेलम हो गई और मैं रोने लग गई, और वहाँ पे और भी सिचुएशन चल रही थी, तो वो सब देखकर, मतलब और लोगों को देखकर भी मैं थोड़ी थी लो, पर वो सब मिल मिला के ओवरवेलम होकर मैं रोई। तो जैसे मैं रोने लगी, वो आई और उसने मेरे को थोड़ा से मेरे से बात करने लगी, कंधा देने लगी कि सी वट एवर हैपेंड इन द शो, आई नो यू योर फीलिंग्स वर ट्रू, और ऐसे करके, आई नो तूने इससे पहले कोई बॉयफ्रेंड या फिर रिलेशनशिप में नहीं आई थी, वो सब बोलने लगी। वो चीज़ मुझे और हिट करी, तो मैं रोने लग गई। जैसे ही मैं रोई, कैमरा आया सदफ का, ये साइड में विशु भी था, और सदफ ने पूरा रिकॉर्ड किया, वो पीछे से मुझे कंसोल कर रही है, हग कर रही है, पर और मैं उसको देख रही हूँ, वो ये चीज़ें बोल रही है कि नहीं आई सिंपथाइज विद यू, कि तूने कभी बाहर बनाया नहीं था बंदा, ये वो वो चीज़ उन्होंने कैमरे पे ली है, पर उन्होंने ये नहीं लिया कि इससे पहले मैं एक्चुअली में क्यों रही थी। वो मैं इसलिए रही थी क्योंकि शी वॉज एक्चुअली टारगेटिंग मी अगेन आउटसाइड द शो, देन आई वॉज बीइंग रियली नाइस टू हर। शुरू में शी वॉज बीइंग नाइस, पर वो फेक नाइस था। बीच में वो ऐसी चीज़ें बोलने लगी, तू सुजैन का कैसे साइड ले सकती है, वो इतनी ख़राब है, तू बहुत गलत कर रही है, देख लेना इसका मतलब रिग्रेट करेगी, ये वो करके। फिर वैसे जाते जाते भी यही चीज़ें बोलते जा रही है। चलो सुलह करा देंगे एक दिन मिला के। नहीं करनी मेरे को, ऐसी लड़कियां दूर ही रहे तो अच्छा लगता है। हाँ, सुजैन एंड रूरू गिव सिमिलर वाइब्स। सुजैन, सॉरी, सौंदर्या एंड दिस रूरू, भाई ये मत डाल देना। Sandhya and Ruru gives similar vibes. Like the energy is very you similar. spoke about this whole comment that she said that you passed on her father, right? Yeah. Recently, Anushka has also come live with her father, and she said that, if I'm not mistaken, that you said that her father created. She claims that you said that her father created a scene in the Miss India. 110% accurate. Is that has that happened? Yeah, and
मतलब लिटरली पूरा मिस यूनिवर्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, द डायरेक्टर एंड द कंटेस्टेंट्स दैट वर विथ मी दैट टाइम, जिन्होंने पूरा देखा है ये सब मुझे बोल रहे हैं चल लाइव चलते हैं, आज इसका भांडा फोड़ते हैं। जब इसका वो लाइव आया ना, रील जो मेरे पास आई, मैंने अपने सबको भेज दिया कि चल भांडा फोड़े इसका भी, तो सबने मुझे कहा कि चल चलते हैं। क्या हुआ था एक्चुअली? तो बेसिकली टॉप 20 में नहीं आई वो, एंड मैं भी नहीं आई थी। तो अब हम सब वी आर वेरी लो, मैं अपनी दोस्त हम सब है ना, वी आर इमोशनल, हम आंसू आंसू आ रखे हैं। उतने में मैं देखती हूँ कि हम बाहर आ गए, बैक स्टेज से निकल के हम कॉरिडोर में आ गए, उधर है ना उसके लड़ाई चल रही है कुछ, तो आवाज़ आ रही है बहुत तेज़। तो मैंने बाहर आके देखा, तो मेरे साथ मेरी दोस्त भी थी, तो कंटेस्टेंट ही, फाइनलिस्ट ही, तो उसके पापा ना बहुत चिल्ला रहे थे कि मेरी बेटी को नहीं जिताया, ये क्या है, ऐसा कैसे कर सकता है, कहाँ है वो डायरेक्टर जो है, उनके नाम लिया कि कहाँ है, उनको गाली दी, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। और जब गाली दी ना, तब मैं ऐसा हो गई थी, भाई पैजेंट में मैंने ये सब नहीं देखा था कि ऐसा होता है बिहाइंड द सीन्स, कि लोग इतने पागल हो जाते हैं कि जीते नहीं, तो कि इसको कैसे नहीं जिताया करके बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई करने लग गए। और फिर उसके बाद उसको अंदर ऐसे गेट वेट खोलने लग गए, सारे बाउंसर्स वगैरह उनको रोक रहे हैं लिटरली ऐसे पकड़ पकड़ के, वो बोले कहाँ है डायरेक्टर, मेरे को बात करनी है उससे, ये वो। और फिर ये सारा सीन हुआ, उसके बाद वो उठ के चले गए। ठीक है, अगर तुम टॉप 20 में नहीं आते ना, फिर भी विनर का अनाउंसमेंट जब होती है, क्राउनिंग होती है, तो तुम्हें रहना पड़ता है टू बी ऑन द स्टेज और ताली वाली मारने के लिए। तो वो चली गई, वो उठ के चली गई अपने मम्मी पापा के साथ, बैग वैग पैक करके चली गई। फिर अगले दिन वो लाइव आई, और लाइव आके उसने बहुत सारी चीज़ें बोली अगेंस्ट दी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें लाइव जैसी वो जा रही थी, उसको ऊपर नोटिफिकेशन आता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसको डिफेमेशन का केस ठोक दिया, पता नहीं कितने लाख करोड़ कितने का था वो। तो वो चीज़ अब वो पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा वो बोल भी कैसे रही, क्योंकि ये लाइव वो खुद आई है, वो खुद ने लाइव में आके उसने बोला है कि भाई डिफेमेशन का केस आ गया, ये वो। लिटरली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि क्या हुआ था उस दिन, क्या सीन हुआ था। उसके बाद भी वो पापा को बिठा के कंप्लेन, जैसे प्रिंसिपल के सामने बिठा देते ना पापा को, वैसे करके। But when did this comment about the, like when did this come out? Like where did you? So basically जब दीक्षा मैं और सुजैन दोस्त थे, तो ये मैंने दीक्षा और सुजैन को बताया था। सुजैन को मतलब कब अलग अलग बताया था या साथ में बताया था मुझे याद नहीं, पर मैंने बताया होगा, मुझे ऐसे याद नहीं है कि मैंने बताया था। तो अभी अपेरेंटली ऑब्वियसली दीक्षा इज़ अगेंस्ट मी, उसको तो मेरी हर चीज़, उसको बस मेरा नाम ख़राब करना है, पूरा कलंक लगा के ही मानेगी वो। तो वो रोज़ एक एक नैरेटिव लेके रोज़ एक दिन लाइव आती है। मेरी दोस्त मुझे बोलने लग जाती है, सुन आज ना एक कॉन्ट्रोवर्सी आने वाली है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है सुन वो दीक्षा है ना 7 बजे लाइव आ रही है। रोज़ का हो गया। तो उसने दीक्षा ने बेसिकली इसको अनुष्का को बोला कि मैंने ऐसा ऐसा बोला है, और फिर उसने लाइव में आके बोला कि हाँ सुजैन ने भी मुझे बोला था, दीक्षा ने भी मुझे बताया कि मेरे पापा ने आके सीन क्रिएट किया था। और मैं तो ऐसा सोच रही हूँ कि तू बोल भी कैसे रही है लाइव में आके, मैंने तो प्राइवेटली अपने दोस्तों को बताई थी ये बात, तू पूरे जनता के सामने फॉर व्हाट, फॉर क्लाउड अपने पापा को लाके झूठी बोल रही है। मैं तो अभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लाइव आके मैं तो कर दूंगी, मैं कल भी अभी भी आ सकती हूँ। लिटरली सर ने मुझे बोला है कि चलते हैं लाइव। But is there a point where you said something related to Anushka and Black Magic? नो नेवर, ये पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किया है। मैं बता रही हूँ ना सारी चीज़ें जो भी, हाउ इज इट कि मेरी जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं कि मम्मी पापा पे बोला है या फिर मैंने ब्लैक मैजिक पे बोला है, ये सब बोला है, ये सब ऑफ कैमरा ही कैसे है, ये सारी बातें, इन सब का प्रूफ कैसे नहीं है? मतलब वो उसने भी जो वीडियो डाली मेरी रोते हुए की, उससे क्या प्रूफ हो रहा है? उससे But ये you and Anushka were friends on the show, right? नो, You were not? मतलब इक्वेशंस ऊपर नीचे होती थी। अनुष्का ने बेसिकली शुरू में ही, अनुष्का हैज़ दिस मतलब 2 पर्सनैलिटीज़, कि वो कैमरा के लिए कुछ और होती है, ऑफ कैमरा। उसने मुझे ये चीज़ बोल भी रखी है कि यार मुझे तो मज़े आते हैं जब ना मेरे को नेगेटिवली लोग बोलते हैं, क्योंकि उसको ना कशिश कपूर बनना था इस सीज़न की। उसने मुझे स्ट्रेट अप बोला था, देखना अगले बार तो मिस्चिफ मेकर मुझे ही बुलाएंगे, क्या लगता है मेरे को ही बुलाएंगे ना, इस बार की कशिश कपूर कौन है, इस बार तो मैं ही लग रही हूँ मुझे ऐसे ऐसे करके। तो वो पूरा बाहर से कैरेक्टर पकड़ के आई थी कि उसको कशिश कपूर बनना था, उसको कलेशी उसको करना था, पर वो कशिश कपूर का मीशो वर्जन बन के रह गई, क्योंकि उसको लग रहा था कि नहीं सिर्फ लड़ाई करने में, झगड़े करने में, बिना मुद्दों के लड़ाई करने में वो बन जाएगी। तो उसको ये था, तो वो बहुत ही अननेसेसरी फाइट्स में इन्वॉल्व होती थी। तो ये चीज़ उसने मुझे बोली थी कि क्लाउड के लिए ना करना पड़ता है। But you know, when you talk about clout, this will be one of the last questions before I move into the segment where you get a gift from Snitch, which I have actually snitched from Snitch.
basically, when they talk about clout, a lot of people have actually come. Yeah. Indirectly, directly said that you knew that Yogesh is going to come with a certain amount of following because of roadies and whatever happened with him in roadies also. He also had a lot of empathy, sympathy from people for whatever happened to him, right? And that you had already planned that तुमको पहले ही पता था कि योगेश आने वाला है शो पे, बाहर आ चुका था और तुमने पहले से ही प्लान कर रखा था कि योगेश के साथ ही मैं पैर अप होंगी. इज दैट ट्रू? व्हाट इज द होल थिंग? दैट इज नॉट ट्रू. सो बेसिकली अब मुझे पता था कि गुल्लू, योगेश, इन सब का नाम तो आ रखा था. तो ऐसा था कि लास्ट का जो डे था जब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, तब मैंने देख लिया था कि भाई ये लोग हैं. एंड मतलब अपीयरेंस वाइज मुझे पसंद आया था वो, क्योंकि मेरा है एक्चुअली वो टाइप. जो मेरी पुरानी सिचुएशनशिप्स भी है ना, दे वर ऑल, मतलब एक तो लिटरली योगेश का, अब बोलने में अजीब लग रहा है मेरे को, पर सिमिलर. या ही वाज वेरी सिमिलर. तो मेरा रहता है कि वो जो थोड़े ऐसा कर्ली हेयर, या कर्ली वेवी लॉन्ग हेयर, ऐसा एथलेटिक, या मतलब ये नहीं बोल रही कि मेरे को उसके लिए, अरे यार आप ऐसे बोलते हो फिर. आप जस्ट से पर बेसिकली ये मेरा है कि वो जो नॉन बियर्ड, मतलब बियर्ड नहीं होनी चाहिए, और एथलेटिक. एक तो वो सिंगिंग वाला चीज़ था, वो मुझे बहुत पसंद आई थी कि उसको गाना पसंद है, गाना पसंद है. तो मुझे वो बहुत, मेरे वो एक चीज़ थी जो मेरे दोस्तों को पता है कि मुझे बहुत पसंद है, व्हेन अ गाय सिंग्स वेल. तो वो सब चीज़ें ऐसा लग रहा था. और वो होता है ना लाइफ ऑफ द पार्टी वाली एनर्जी, वो सब था उसका. बट मुझे ये था, हमेशा से मुझे ये ज़रूर से रहा है कि मुझे पता था क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, तो मुझे पता है आगे जाके ये लोग बोलेंगे कि भाई पॉपुलैरिटी की वजह से गई है. तो आई मेड श्योर कि एक हार्ट दिया है मैंने बस उस, क्योंकि वो शो वालों ने बोला है कि वो तो देना ही पड़ेगा जिसको भी पसंद है, इसलिए मैंने दिया. उसके आगे मैं अप्रोच नहीं करूँगी. वो आएगा तो सामने से आएगा, और अगर आता है देन इट्स फाइन, नहीं आता है तो आई विल मूव ऑन. क्योंकि मैं वो आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट वाला उस पूरे जोन में रहती हूँ मैं, कि लड़कों के लिए तो मैं नहीं जा रही भाई. तभी तो ये रूरू वाला सिचुएशन आया. आई नेवर वेंट अप टू हिम कि बोलने की मुझे चूज कर, अगेंस्ट माई ईगो. मतलब ईगो है मेरे में इतना, तो at least you are accepting it. या इतना होना भी चाहिए. आई फील मतलब व्हेन अ गाय इज कंफ्यूज्ड बिटवीन टू गर्ल्स, लीव हिम. या मतलब साइड लाइन हो जाओ, जल्दी से कट लो, बचे हो तुम. But if Yogesh, would you ever give Yogesh a second chance? नो, आई मतलब अब तो क्या, वो तो अच्छा खासा उसकी रिलेशनशिप चल रही है. Suppose hypothetically, if that doesn't work out, if he thinks, I don't think so. would you meet him? Would you have a conversation with him at least? Not at least अभी, maybe not अगले 1-2 सालों में. I don't know. मैं फ्यूचर में यही होता है कि नॉर्मली लोगों के साथ ये होता है, हमारी कितने भी कलेश हो, बीफ हो, मैं उनसे मिलती हूँ तो सही हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ. बट ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूल पाती, जो हमारे बीच में हुआ था. बट अगर मतलब इफ़ आई एक्चुअली, मतलब आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम हिम बट नॉट फ्रॉम द सिचुएशन. तो वो सिचुएशन से जब मूव ऑन कर लूँगी मे बी, बट आई डोंट थिंक फ्रेंड्स वाली चीज़ तो हो पाएगी उसके एंड से भी, मेरी एंड से भी. I don't thought of beyond friends. I asked. उसका तो मतलब ही नहीं है ना अभी, वो ही इज विद समवन एल्स एंड आई डोंट वांट टू बी विद हिम. Never. नो. Have you guys ever spoken after the show? आई मीन शो एंड हो गया था, तो तब वी हैड आवर लास्ट कॉन्वर्सेशन शो में ही. तो बेसिकली एक लास्ट कॉन्वर्सेशन थी, उसको मुझसे कुछ सुनना था, मुझे कुछ बोलना था उसको, एंड उसके आगे पीछे की भी बहुत बातें थी. तो ही डिड फील सॉरी, और उसने बोला, थोड़ा किया, उसने बताया कि वो क्या फील करता है क्या नहीं, एंड क्यों उसने वो डिसीजन लिया था. तो बेसिकली वही 4 पॉइंटर्स जो मैंने पहले भी बता रखे हैं कि फैमिली न्यू ईच अदर. वो मेरे सामने पता है ये नहीं बोलता था. लव, जब हम अकेले में बात करते हैं ना, तो उसने कभी ये नहीं बोला कि उसको फीलिंग्स है रूरू के लिए. उसने हमेशा ये 3-4 पॉइंट्स बोले हैं कि हमारी एक दूसरे की फैमिली जानती है एक दूसरे को, और वो मेरे लिए काम छोड़ के आई है, विच आई नेवर अंडरस्टूड. कि 10 दिन का ऐसा कौन सा डीजेइंग का गिग आ गया था कि स्प्लिट्सविला मतलब छोटा पड़ गया. ऑब्वियसली स्प्लिट्सविला इज़ बिगर, और वहाँ से उसको फेम मिलेगा, वो वाइल्ड कार्ड की तरह एंट्री मारेगी 1 महीने बाद. उसको पता है, एक तो मुझे ये भी समझ नहीं आता, इतना ही प्यार व्यार है तो मतलब उसका शो, गेम, सब कुछ ख़राब करने वो क्यों आई.
उसको पता है 1 महीना हो गया है शो में, उसका ऑब्वियसली कोई कनेक्शन होगा, वो एंड तक खेलना, उसको जीतना है। अगर उसको रोडीज इतना ही बचपन से उसका सपना था। If you were in Ruru's place Yeah. and you had not gotten closure and you got this opportunity, you would come No, on this? I wouldn't go at all. मैं नेशनल टेलीविजन पे मुझे ये ड्रामा पहली बात तो मैं कभी नहीं करती। मैं तो इस ड्रामे में आ गई रैंडमली, विच वॉज वेरी एम्बैरेसिंग। मेरे पास चॉइस होती, मैं ये सामने से कभी नहीं, और मैं किसी लड़के के लिए सामने से इतना बड़ा स्टेप तो नहीं उठाऊंगी आफ्टर द फाइट। क्या एक दूसरे को मतलब अभी व्हाट इज द स्टेटस? हैव यू गाइस ब्लॉक्ड ईच अदर? हैव यू गाइस लाइक ब्लॉक तो नहीं किया है मैंने, क्योंकि वही है ना, मतलब कुछ एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मतलब अब ही इज नॉट इन माय लाइफ। लास्ट क्वेश्चन वुड बी दैट सब कुछ आपने देखा है, यू सीन एवरी साइड एंड एस्पेक्ट टू योगेश एंड द होल सिचुएशन एंड एवरीथिंग. डू यू फील एज ऑन अ ह्यूमन लेवल whatever the situation is, okay, आपके साथ गलत हुआ है, right, of course आपके साथ आपको गलत ही हुआ है, Yeah. but do you still hold something against Yogesh as a human being? Do you feel that he is not a good human being? नो, ये तो मैंने शो पे भी बोला है। आई थिंक दिल का वो साफ है। 25 दिन में कोई इतनी एक्टिंग नहीं कर सकता पूरे दिन। हम अकेले साथ भी रहते थे, हम बातें करते थे, बहुत डीप बातें भी करते थे। उसका मैंने सब कुछ पास्ट प्रेजेंट, वो क्या फील करता है हर चीज़ के बारे में, छोटी छोटी बातें, सब बातें हुई हैं। तो मुझे पता है कि इंसान दिल का बुरा नहीं है। आई थिंक पर अगर ये प्लान्ड है, विच नाउ मतलब लिटरली प्रूफ्स है बाहर, बट कुछ भी हो सकता है ना, हमने उसका साइड नहीं सुना, कुछ भी हो सकता है। अगर वो है, अगर प्लान नहीं है तो ही इज़ अ नाइस पर्सन। अगर प्लान्ड है तो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट। प्लान करके अगर तुम किसी का दिल दुखा रहे हो, उसको तुम्हें पूरा टाइम पता है कि वो लड़की का फर्स्ट टाइम शी इज ओपनिंग अप टू अ गाय, और तुम फिर भी ये चीज़ कंटिन्यू कर रहे हो, अपनी एक्स के बारे में नहीं बता रहे हो और ये भी नहीं बता रहे हो प्लान डेज, तो देन यू आर नॉट अ नाइस पर्सन। You know, there's a huge difference Yeah. which people don't realize between two words. या One is sympathy and the other one is empathy. एम्पैथी। Right? While many might empathize, I empathize with your situation. I Yeah. don't sympathize with you at all because I Yeah. feel like you're strong enough या to lead life Yeah. the way you want to. Okay? That doesn't mean that I'm taking away anything from your journey or your struggles Yeah. or whatever you're faced. एब्सोल्युटली। But when you are constantly, there are also people who sympathize with you because they don't understand maybe what empathy means, or they sympathize with you in general. Yeah. Okay? When people label that and call you a sympathy queen, how do you take that? Be honest, या on a human level, no matter what happened with you, कभी ये टैग जितनी भी स्ट्रांग हो, कभी ये टैग अकेलेपन में भी अगर आपने सोचा हो, हैज इट अफेक्टेड यू? या आई मीन इससे पहले मुझे और भी टैग्स मिले हैं बहुत बुरे, तो जब शुरू में मिले थे तब इट डिड अफेक्ट मी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब सोचो ना कैसे लोग होते हैं कि तुम्हारे साथ कितना ही बुरा हो जाए फिर भी है ना, मतलब जस्ट बिकॉज दे आर फैन ऑफ समवन, वो किसी दूसरे के दुख को ये नाम दे देंगे, टैग्स दे देंगे। मैं अब देखो, पता नहीं लोग अपेरेंटली बोल रहे हैं मैं लाइव में जाके रोती हूँ, मैं किसी लाइव में नहीं रोई हूँ। मतलब मेरी आंखों से किसी को लग गया होगा कि मैं रो रही हूँ, पर मैं किसी लाइव में रोई नहीं हूँ। मैंने सिर्फ इमोशनल हुई हूँ मैं लाइव्स में, और इमोशनली मैंने आंसर किए हैं, विच एवरी सिंगल पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ हार्ट ब्रेक मतलब विल डू। वो वैसे अब मैंने हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया, मैं क्या हंसते हंसते मुझे सैडनेस फील हो रही है तो मैं ज़बरदस्ती हंस के बात करूँ, दैट इज़ बीइंग नॉट रियल टू योर ऑडियंस। अब मैं वही सब सोच के बार बार दिमाग में फैब्रिकेट करके चीज़ें बोलूँगी जस्ट सो पीपल मेरे को, मतलब पीपल डोंट कॉल मी सिंपैथी क्वीन, तो फिर तो वो आई एम नॉट बीइंग रियल टू माई today's episode there's a 2.0 version of मतलब मैं आई हैव टेकन माई टाइम शो में कि मैं पहले रोई, मैंने पहले तो मैं शॉक हुई, फिर उसके बाद आई टुक माई टाइम, मैं थोड़ा इमोशनल हुई कि मेरे साथ ये सब हुआ है, प्रोसेस किया, उसके बाद आई गॉट इन थ्रू माई रिवेंज मोड। अभी बाहर आके बिकॉज वो सारे मोमेंट्स जो मैंने जिए थे लाइफ में जिए, वो मैंने अपने उसमें देखा, मतलब ऐसे सामने देखा, और अब वो पूरे इंटरनेट पे छप चुका है। मैं रोज़ एडिट्स आती हैं इतनी सारी, तो मैं उस जोन में वापस चली गई थी। आई स्टार्टेड रीलिविंग द एंटायर सिचुएशन, तो तब मैं वापस ऐसा लग रहा है मैंने वापस हार्ट ब्रेक हुआ है, तो इसीलिए वो सारे इमोशंस। और ऑब्वियसली मैं पहले ये सब नहीं बता पाती ना, अब इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, दे नीड एन आंसर, दे नीड सम एक्सप्लेनेशन, दे वांट मी टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स, तो ऑब्वियसली आई विल गिव आंसर्स अबाउट माई सिचुएशन एंड माई जर्नी, क्योंकि यही थी मेरी जर्नी। इसके अलावा क्या थी जो शुरू में थी, मैंने सब कवर किया है, और जब हार्ट ब्रेक होगा तो मैं वो भी तो कवर करूँगी ना। वाई वुड आई नॉट स्पेसिफिकली वो पार्ट हटाऊँ जो सबसे मेजर था, जिसने मेरे को दिल मतलब
इतना स्ट्रॉन्ग भी बनाया पर एक टाइम पे इतना तोड़ भी दिया था। Yeah. वो चीज़ तो मैं बताऊंगी ना ऑडियंस को, और जो मेरे मतलब द पीपल हु ट्रूली एम्पैथाइज विद द सिचुएशन एंड विथ मी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बाकी जो हेटर्स है उनको तो मैं नहीं रोक सकती। Yeah. इतने करोड़ों की जनता है, अब उसमें कर लो सिंपैथी क्वीन, एटलीस्ट क्वीन तो हूँ मैं। Now we'll move on to this fun segment that we Yeah. have. It's called Fit Check. तो मैंने शुरू किया था आपके साथ because of course Snitch has powered this episode. So we have Yeah. Fit Checks. Now I want to before we begin, okay? It's a fun segment. What do you think of my Fit Check? I These are give baggy it- pants. This is like a jacket, shirt, Yeah. jacket, and of course you can see the T-shirt. And perfume भी मैंने उन्हीं का लगाया वैसे तो। अच्छा, उनका परफ्यूम भी है। जी। आई थिंक मेरे को ना कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है। द रेड शूज, द लाइलैक टी शर्ट एंड द डेनिम ऑन डेनिम। So out of 10, देखो मैं ना वैसा फुल मार्क्स तो नहीं दूंगी। मत दो, फुल मार्क्स कौन देता है? ऐसा आप ज्यादा चढ़ Always जाओगे। keep room for improvement. हाँ, आई थिंक मे बी लाइक 9.2। 9.2, that's huge. Very शुक्रिया, specific. शुक्रिया। ये एपिसोड से पहले ही मैं गया था स्निच स्टोर and I got this done. I actually did my look today, so it's a great thing. Please go and visit any of the Snitch stores and get a look, similar look. Basically, it's a segment called Fit Check. Okay. Simple है. 8 Splitsvilla contestants के photos हैं. ओके Okay. You have to do 2 things. First, I will show you and I will hide their faces. You have to guess who it is from the fit checks. ठीक है। And then you have to rate The the fit fit. checks and be honest. Okay. No personal negative or positive biases. ठीक है। As a only from fashion point of view. Alright. Okay. 8 Fashion है, police has a जितने आप गेस कर पाओगी हाँ। उस हिसाब से आपको मिलेंगे पॉइंट्स एंड फिर आपको मिलेगा स्निच से 1। अगर मैंने सारे Gift, आंसर किए तो सारे मिलेगा। तो नहीं, सारे अगर नहीं भी बाई चांस नहीं हुआ तो पर then मिलेगा तो सही ना। मिलेगा कि नहीं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके। फर्स्ट वन, बाय द वे दिस इज आल्सो फ्रॉम स्निच इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ। हु इज दिस? कौन है ये? चिड़िया उड़। कौन है ये? It's Mr. योगेश रावत। What do you think of the fit check though? देखो फिट अभी तो मैं नहीं दे पा रही इसको ज्यादा अच्छे नंबर में से। पर्सनल बायस हटा के ओनली लाइक maybe the jacket. What do you think of the jacket? पहला ही बम फोड़ दिया। ये जैकेट तो तुमको नहीं दिया था, ये हमने देख लिया। Otherwise I wouldn't have put this. This is Snitch का jacket if I'm not mistaken. Yeah, this is Snitch का jacket. ओह, Yeah. द जैकेट लुक्स नाइस। ऐसा वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऐसा करो। हाँ, द जैकेट लुक्स नाइस। आई थिंक जूता क्या पहना है? ठीक है, द फिट आई थिंक द पैंट्स डोंट गो विद द जैकेट, so I'll give it like a 7. But you like the jacket. Jacket is nice, the color is nice. I also love the color. I love this Yeah. color. I want The my person is not. I want my Kolkata home door. This is the conversation that I'm having. That this is the color I need अच्छा, for my इसकी Kolkata जैकेट वाला home. कलर लगा दो भैया। हाँ. Okay, next. इतना खुश क्यों हो रहे हो? Who is this? गौरेश ना? Huh? गौरेश नहीं, विशु। You think and you tell me. नहीं, दिस इज गौरेश। ये गले में Okay. पहनता है वो ऐसा। Goresh, you have answered. But what do you think of the fit check? ये क्या? It is Goresh. खुश क्यों हो रहा हूँ मुझे पता है. अरे कि गलत नहीं बताया। मेरे को कपड़ा चाहिए ना। और कुछ और भी है. अच्छा, गिफ्ट। इसका यार फिट तो अच्छा लग रहा है। आई थिंक आई लाइक द नेकलेस एंड एवरीथिंग, तो आई विल गिव इट लाइक, पर है ना वापस को, पर ऐसा कुछ तो मिसिंग लग रहा है फिट में। क्या? आई थिंक द पैंट्स डोंट गो विद द जैकेट, पूरा कलर वो वाला उसमें Okay. हो नहीं रहा, तो आई थिंक आई विल गिव इट लाइक 8.5, 8.7। 8.7. Yeah. सब कुछ मैच नहीं हो रहा बोला फिर भी 8.7. No, I'm doubting. इसका कैसे करें? चलो मुंह ढक देते हैं. Who is this? ये हिमांशु है क्या? देख लो. आई
I think it's Himanshu or आयुष तो नहीं होगा, हिमांशु है ये। Okay. What do you think of the fit check? गलत जवाब, Oh, विशु है ये। फिट तो यार I'm not really into printed ये shirts वगैरह, तो मेरे को अच्छे नहीं लगते, तो I'll give it like a 6. 6. हाँ, ज़्यादा कम नहीं करते कि मारता है वो टपली बजा देता है। ये तो गुल्लू है, गुल्ले। वाह, सही इसकी जवाब। चाल में पता चल गया मेरे को। फिट चेक। इसका देखो बहुत बेसिक फिट है, बट आई थिंक ही स्टाइल ऐसे बढ़िया करा है, बहुत सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड, आई थिंक शीक लग रहा है, तो आई विल गिव इट लाइक अ 9. 9. Yeah. Wow, lovely. चलो, just for keep's sake. अब तो देख लिया। बट तुमको आता था ये? या इसका ये फोटो देख रखा है। ये तो दीप्तांशु। ये मेरी गलती की वजह से। My favorite contestant of all guys. ये गर्ल्स में कौन है आपका? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। See, I'm saying. Who is तोड़ दिया है this? बेचारी को। ये रॉन है। I think रॉन। Sure. घर पे जो मार पड़ेगी इसको। और फिर इसकी ये कौन सी फोटो है? मैं तो कभी नहीं देखी है। Of course ना, तुम सब कुछ देख लोगे तो कैसे? नहीं यार, ये तो नहीं जमा मेरे को। ऐसा लग रहा है टेंट पहना है इसने। You don't like this at all. No. How much? 3, 4? I think the trench coat is very oversized you and didn't- doesn't go with the fit. How much? पागल लग रहा है, नींद में लग रहा है। Clearly, this whatever brand he is wearing is going to have hiccups. No, it's not snitch, so I don't care. सॉरी, आई मीन नहीं, वो अंदर के फिट से बाहर का फिट मैच नहीं करा, तो आई विल गिव इट लाइक अ 5. बाबा 5. भाई ये तो क्या हुआ, कपड़े ढंग के पहन। हाँ. Who is this? तो लड़के कौन होते हैं और कौन थे शो पे? ये लड़कों के नाम बोलो ना, मैं भूल गई हूँ। और हाय हाय। शख्स तो नहीं है, और कौन? हंसे आप, चेक है क्या? मुझे क्या पता, मैं तो तो और नाम लो ना लड़कों के, और कौन? किसका नहीं? हर्षित तो नहीं है ये, हर्षित है, हिमांशु है, हिमांशु भी नहीं है। टेन है, और टेन, चक्षदीप गोरा है, आई थिंक ये आयुष चक्षदीप है। है, चक्षदीप, आरव है। चक्षदीप। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। आपने स्माइल जो होल्ड करी भाई। चक्ष। इसका फिट, इसका अच्छा लग रहा है। You don't like Chaksh is what I've realized. Why? See, मतलब it's just that I'm close to Anisha and whatever is Oh. happening, तो इसलिए I can't like choose his side. I think इसको अभी तक का highest दे देती 9.2. No. अभी तक का highest is me. You. Last है। हाँ, ये 9.2, मतलब अगर हो गया तो मतलब मैं तो शॉक में चला ये जाऊंगा। आपको but 9.5 था ना? 9.2 दिया था। 2 दिया था आपको? 9.5 देना है, दे दो। Who is this? अपना अंग्रेज, टेन भाटी from गाजियाबाद। What would be? I think अगर बिना चश्मे के देखूं मैं तो ज़्यादा नंबर नहीं दूंगी, but with the glasses and the chain I think I'll give it like 9.2 only. 9.2? Yeah, I like these jackets, ऐसा racer jackets मुझे बहुत पसंद है, and ये चश्मा भी is really going well. अब इतना ही है, इनके और फैशन गेम नहीं है भाई, ये स्प्लिट्स वाला के लड़कों के पास। Debatable. चक्ष का मुझे समझ में आया 9.2, but this 9.2 I didn't get. Because he's wearing it with shorts though. Let me just add it. मुझे क्या दिख रहा है शॉर्ट्स? हाँ नहीं दिख रहा, पर मुझे पता है ये पिक्चर ऐसा है इसलिए। I know. अच्छा, I think I'm 9.5. ना you said. So it's okay. I'll take it as 9.5. So इस because निचला वालों का नहीं है फैशन गेम। हाँ फैशन गेम तो मेरा बहुत। हाँ। हम लोग तो आपसे ये पैकेट से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, बट ठीक है, पहले आपको देते हैं ये गिफ्ट फ्रॉम स्निच अगेन। Let's go. It's for you to see what it is, and then I'll tell you why I picked this for you. It's an Perfumes. yeah, it's an entire perfume set. So essentially, Snitch is a menswear brand, but I feel and I believe that men's perfume is the best thing. I don't know if you use Yeah. men's perfume, but men's perfume is
better than anything. I don't really use men's perfume. ये men's है. But you must use this. Yeah, I will. but I this will. is basically like 5 different. I've given you like those short bottles so that you can try and see which is your vibe. And this is. Thank you so much. And Love it. And this is. I think what is the size that you wear? In clothes. Small. Yeah, small. So this is the only. I would have gifted you this because I absolutely love it. Okay. This is. There was only one left, and I had already worn it. And मैंने shoot कर लिया था कि आज मैं यही पहन रहा हूँ. इसलिए मैं आपको ये नहीं दे पाया. But I've got something else for you in your size. See if you like it. If you like it, great. Of course you will like it, I know. But even if you like this, I'll give this to you. Okay, let's go. Love that. और दोनों चाहिए रहेंगे तो? ले लो. तुमने मुझे इतना वक्त दिया तो ये तो मैं कर ही सकता हूँ. मेरे कपड़े उतर रहे हैं मेरे शो पे, but that's not a problem at all. वो एक लड़की आई थी स्पिरिचुअल के कपड़े उतार के Fit check. Let's go. यार I like this as well. हाँ ना? As well बोली मैं. हाँ. दोनों चाहिए. दोनों चाहिए. ये शूट खत्म होने के बाद. अभी Definitely. फिर चेक का पार्ट है. Anyway, jackets have always had a deeper meaning for you on the show, so I thought. ऐसा ही होता है. 2 मिनट खुश होने की कोशिश. नहीं खुशी कर रहा हूँ, but मैं नेक्स्ट लाइन मेरा है. लेकिन ये जैकेट मैंने किसी और को नहीं दिया है. मैं तो अपना भी उतार के दे रहा हूँ जो नया है. तो ये This is what I wanted. See, इतना ही तो चाहिए था. मिल गया. मिल गया. चलो ये आपको मिल गया. चलिए ये तो मैं घर पे पहन ही लूंगी. इसका अलग मजा है. हाँ चलो पहन के दोनों ही मैं- पहन लेना. ये लो. I will make you. I think this will go. Yeah, मेरा great फिट like, हो. अब मेरा फिट बताओ. Out of 10. 10 on 10. Let's go. Hi, yes. I think this is very fashionable. I love oversized me. I like the over the shoulder jackets. I think it's Yeah. amazing. I think you're looking. What does the audience think? Please say. I think. But thank you so much for doing this. And genuinely, I had the most amount of fun doing this. I remember that when we spoke, you had told me that let's make it fun. Yeah. And I hope you had fun. That's the whole idea. I did. I think the best part was definitely the tarot card session. Lovely. Yeah. जो मेरे questions पूछे नहीं है, but I know the answers of those questions. So वो वाले थोड़े से ऐसे थे, हिला के रख दिया मुझे. Even between the interview, I was like कि अरे ये क्या बोल के चली गई है मैम. But yeah, ठीक है जो है वो है. आंखें खुल गई है मेरी. I'm more aware now. And I loved it. Thank you so much for having me. I know अब मुझे समझ आ गया है कि नहीं फोन उठाने के बाद क्या होता है. फोन उठा लेने चाहिए इंसान. फोन उठा लेते तो एक्चुअली फोन नहीं भी उठाते तो भी मैं इफ यू वांट मोर आई विल गिव यू. आई लव गिफ्टिंग एंड आई लव द वाइब दैट यू कैरी. आई फील लाइक आपने एक बात बोली, बहुत सही बात बोली कि आपके दिल ही दिमाग में और जहन में ये बात होती है कि कोई आपसे मिले तो खुश होके मिले और खुश होके ही रिटर्न करे अपने घर. आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई एम गोइंग बैक होम टुडे एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, यू नो. I'm sorry I scolded you, but at the same time, trust me, I didn't have anything against you because I genuinely feel that you're a nice, warm person. And when I go back and sleep today, I will genuinely have a very, very, very happy sleep because I think that this was one of the best conversations that I've had this year for sure. This is literally like the best compliment that I want to get from everyone. मुझे एक compliment चाहिए रहता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा और हमारी पार्टनरशिप और हमारी दोस्ती Let's सदाबहार. Thank you so much for doing this. Thank you. Thank you. Bye guys.